میرا ہوں، میری جان اٹھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ رات کی دوائیوں کی جرت سے سوئی بھی میرا کو سامر پاس بیٹھا ہوا بڑی محبت سے جگا رہا تھا۔ اس کے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیرتے ہوئے بڑی محبت سے اپنی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ میرا نے نیند کی خماری سے بھری ہوئی آنکھوں سے سامر کی جانب نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اٹھ جاؤ میری جان، مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے اپنی پیاری بیوی کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے۔ سامر کے لہجے میں ایک الگ ہی محبت اور نرمی تھی جس کو میرا کے دل نے محسوس کرتے ہوئے ایک بیٹ مس کی تھی۔ میرا نے کہیں نہ کہیں اپنے دماغ میں یہ سوچ رکھا تھا کہ کل ولیمے والے حادثے کے بعد سامر اس سے ناراض ہوگا اور اس سے سوال پوچھے گا، مگر سامر کے رد عمل سے ایسا کچھ بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ میرا سوچتی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی کہ سامر نے ابھی تک اس سے کوئی سوال کیوں نہیں کیا، بلکہ سامر کا لہجہ پہلے سے زیادہ نرم اور محبت بھرا تھا۔ میری جان، مجھے تم بعد میں اتنے غور سے دیکھ لینا، فی الحال تو میرا بھوکا پیٹ مجھے بددعائیں دے رہا ہے۔ اٹھ جاؤ تاکہ ہم ناشتہ کر سکیں۔ میرا جو بڑے غور سے سامر کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ سامر کے بولنے پر شرماتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرا چپل پہنتے ہوئے واش روم میں فریش ہونے چلی گئی، جبکہ سامر اپنے دماغ میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کی وجہ سے میرا اتنے سال ڈرے اور سہمے ہوئے گزارے تھے۔ سامر کا خون کھول رہا تھا یہ سوچ کر کہ اس گھٹیا انسان جسے وہ اپنا ایک اچھا دوست سمجھتا تھا، اس نے میرا کے معصوم بچپن پر ایک کالا عکس چھوڑا جس کو وہ اتنے سالوں بعد بھی بھلا نہ سکا۔ اب شامل سب دھندلی تصویریں صاف دکھائی دے رہی تھی کیونکہ وہ جب بھی میرا کے نزدیک جاتا تو میرا گھبرا جاتی تھی کہ وہ میرا کی آنکھوں میں ہر بار اپنے لیے محبت محسوس کرتا تھا، مگر ساتھ میں ایک انجان سا ڈر بھی اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دیتا تھا جس کو سامر سمجھنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی سمجھ نہیں سکا تھا۔ کمینے، تمہیں اور تو میں اتنے ٹکڑے کروں گا کہ کوئی گن بھی نہیں سکے گا، مگر اس سے پہلے کہ مجھے میری معصوم محبت کو اس دنیا کی لذت سے دور لے جا کر اس کے دل میں اپنے لیے چھپی ہوئی محبت کو اجاگر کرنا ہے، اس کے دل میں اپنے لیے اتنی جگہ بنانی ہے کہ وہ اپنی زبان سے مجھ سے محبت کا اعتراف کرے، اپنی محبت کا مان اور اعتماد اس قدر دینا ہے کہ اس کے دماغ میں تمہارے گندے عکس کا ڈر نکل جائے۔ سامر سوچتے ہوئے بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ میرا کو کشمیر لے کر جانا چاہتا تھا تاکہ جہاں آپس جا کر وہ میرا کے دل سے اس ڈر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے میرا کے اور اپنے رشتے بےحد مضبوط بنا سکے۔ وہ میرا کو اپنے بھرپور وقت دے کر اپنے رشتوں کو آگے بڑھانا چاہتا تھا کیونکہ اب یہ بےحد ضروری ہو گیا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے جیسے وقت گزرے گا میرا وشواس دور ہوتی جائے گی، وہ اس ڈر کو اپنے رشتے پر حاوی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ سامر ایک سلجھا، سمجھدار، پڑھا لکھا انسان تھا، اسے پتہ تھا کہ اس سب کے لیے اس کے گھر سے اور کام سے دور ہو کر ہونا بےحد ضروری ہے۔ اس نے ایک ویک کی چھٹی بڑی مشکل سے لی تھی کیونکہ عاصم والے کیس کو سامر خود ہینڈل کر رہا تھا، اس لیے اس کا جانا بہت مشکل تھا، مگر اسے اپنے رشتے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چھٹیوں کا فیصلہ کرنا پڑا تھا۔ سامر کے کام کا ریکارڈ بہت اچھا تھا، سامر کبھی فضول میں چھٹی نہیں لیتا تھا، اس لیے اللہ کا شکر تھا کہ اسے چھٹی مل گئی تھی۔ 15 دن کی چھٹی اپلائی کی مگر صرف ایک ہفتے کی ہی پاس ہوئی۔ آج شام کو میرا اور سامر کشمیر کے لیے نکلنا تھا۔ بھائی، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا میرا کو لے کر جانے کا، اس سے آپ دونوں کو ایک ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا موقع ملے گا۔ بیٹا، میں بھی میرب کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، تم نے بہت اچھا کیا، اس طرح تمہیں بھی کچھ دن کام سے چھٹی مل جائے گی، ورنہ تو تمہاری جان ہی نہیں چھوٹتی کام سے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سارے کیس میرے بیٹے کے کھاتے میں ہی ڈال دیتے ہیں۔ نہیں میری پیاری ماما، ایسا کچھ نہیں، بس ان دنوں مصروفیت تھوڑی زیادہ ہو گئی، ایک ضروری کیس ہینڈل کر رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ کہیں گھومنے کا پلان ضرور بناؤں گا۔ وہ اپنی ماں کے گلے میں بائیں ڈالتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کی پشت پر آن کھڑا ہوا۔ میرا پیارا بیٹا میری بہو کو لے کر جا سکتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر صبح صبح اپنی ماں کو بٹر مت لگاؤ، اتنے سالوں میں تم کبھی ہمارے ساتھ گھومنے گئے نہیں، آج کیسے تمہیں خیال آ گیا کہ تمہیں ہمیں لے کر گھومنے بھی جانا چاہیے؟ سامر کی ماں سامر کے کان کھینچتے ہوئے مسکرائی۔ بٹر نہیں لگا رہا، سچ کہہ رہا ہوں، اب مجھے عقل آ گئی ہے، میں بڑا ہو گیا ہوں، اب مجھے لگنے لگا ہے کہ مجھے اپنی فیملی کو لے کر باہر جانا چاہیے۔ سامر ذوق ہو کر ہنستے ہوئے بولا۔ وہ اپنی ماں کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ اپنے روم سے ڈائننگ ٹیبل پر آتے ہوئے ملک زیبا نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مسکرا دیا۔ خیریت تو ہے؟ صبح صبح ہی میری بیوی سے اتنی محبت کیوں جگائی جا رہی ہے؟ ملک زیبا ڈائننگ ٹیبل پر کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گئیں۔ آپ کی بیوی میری ماں ہے اور میں اپنی ماں سے محبت جتا رہا ہوں تو آپ کیوں اتنے جیلس ہو رہے ہیں؟ سامر شوق ہو کر مذاق کرتا ہوا بولا۔ برخوردار، بے شک یہ تمہاری ماں ہے، مگر تم ذرا ہماری بیوی سے دور رہا کرو۔
अब तो तुम्हारी शादी करके तुम्हें इतनी खूबसूरत बीवी लेकर दी है, तो तुम मेरी बीवी को छोड़कर अपनी बीवी को तवज्जो दिया करो। मलिक ज़ुबैर भी सुबह सुबह का शौक अंदाज में अपने बेटे को मजाक करते हुए बोले, भाई अब आया ना मज़ा, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। मीरा को अपने भाई की खिली उड़ते हुए देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था। आपके परवरदिगार मुझे मक्खन इसलिए लगा रहे थे क्योंकि ये अपनी बीवी को लेकर हनीमून के लिए मरी जा रहे हैं, और इनको लगता है कि मैं रवायती सासों की तरह अपना मूड कहीं ख़राब न करूं, तो ये बेचारे मजबूरन मुझे मक्खन लगा रहे थे। सामिर की मां ने भी सामिर की टांग खींचते हुए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सबने सामिर को चारों तरफ से घेर लिया, तो सामिर की शक्ल देखकर मीरा और उसके मम्मी पापा तीनों एकदम कहा लगाकर हंस पड़े थे। भाई की शक्ल देखो, एक पुलिस वाले होकर किस कदर घबराए हुए हैं। मीरा हंसते हुए बोली, बेटा जी जितना भी बड़ा पुलिस वाला क्यों न हो, मगर जब बात सास और बहू की आती है तो बड़ों के छक्के छूट जाते हैं। मलिक सुबह सामिर की नाजुक हालत को देखकर हंसते हुए चाय का सिप लेते हुए बोले, बस भाई चुप कर जाओ, सब तो मेरे बेटे के पीछे ही पड़ गए हैं। सामिर की मां ने अपने बेटे की हालत देखकर इसका साथ दिया। मामा आप भी कुछ कम नहीं है। सामिर हंसते हुए नाश्ता करने लगा। कब निकलना है तुम दोनों ने? मलिक ज़ुबैर ने सवाल किया। आज शाम को, सामिर ने नाश्ता करते हुए मसरूफ़ लहजे में जवाब दिया। तुम लोगों ने पैकिंग कर ली? सामिर की मामा ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं मामा, अभी तो नहीं, कि नाश्ते के बाद करेंगे। वाह भाई, करेंगे। मेरा भाई जो कहे जाते हुए अपना मोबाइल तक भूल जाता है, वो पैकिंग करेगा। मेरे अपने बात को खींचते हुए फिर से मजाक किया। मेरे आपके बच्चे सुधर जाओ, तुम्हें तो मैं आज वापस छोड़ के आता हूँ। तुम तो बड़ी तेज़ हो गई हो, अपने भाई की टांग खींचे जा रही हो। सामिर ने प्यार से मीरा की जानिब देखते हुए कहा। ब्यूटीफुल प्लेस मिस, प्लीज़ मुझे यहाँ के बारे में कुछ बताएं ना। सामिर के साथ चलती हुई मीरा इर्द गिर्द के मंजर को बहुत खुशी से देख रही थी। वो दोनों होटल रूम की जानिब आ रहे थे। आज़ाद कश्मीर को जन्नत नज़ीर वादी के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन मकामात में कश्मीर का एक अपना अहम मकाम है। कश्मीर के खूबसूरत वादियों का कोई सानी नहीं, और यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए सियाह दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। जैसे हम कराची से इतनी दूर कश्मीर की खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ होने आए हैं। ये बहुत पुरसुकून जगह है। यहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं। मेरी यहाँ पर कितनी ठंड है। मेरा अपने बाजू को सहलाते हुए सामिर के साथ चल रही थी। रूम में चलो, तुम्हें गर्मा गर्म कश्मीरी चाय पिलाता हूँ। होटल की जानिब चलते हुए मेरा अपने बाजुओं को सहलाने के साथ साथ इर्द गिर्द के खूबसूरत मनाज़िर देख रही थी। मेरा कश्मीर पहली बार आई थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सरसब्ज़ वादियाँ देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। हर तरफ से ढके हुए पहाड़ एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। आसमान ऐसे लग रहा था जैसे पहाड़ों के ऊपर ही झुका हुआ हो, और खूबसूरत नदी के ऊपर बर्फ़ की लेयर देखकर मेरी की आंखें खुशी से चमक रही थी। मेरी ये कितना खूबसूरत मंजर है, पूरी नदी के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। हम यहाँ पर अपने पिक बनाते हैं। मेरा खुशी से बच्चों की तरफ फरमाइश करते हुए बोली। हाँ हाँ मेरी जान, हम लोग यहाँ पर बहुत सारे पिक्स बनाएंगे और मैं अपनी जान को पूरा कश्मीर घुमाऊँगा, मगर फ़िलहाल हमें होटल रूम में जाना है क्योंकि तुम्हारी तबीयत थकन से ख़राब हो सकती है। सामिर फिक्रमंदी से बोला। सामिर की नज़र मीरा के ऊपर थी, और वो मीरा की खुशी के हर लम्हे को अपनी आंखों में कैद करके ले जाना चाहता था, जिसकी शुरुआत इसने आते ही कर दी थी। सामिर रिसेप्शन से अपने रूम की चाबी लेते हुए अपने हैंड कैरी को खींचते हुए मीरा को लेकर अपने रूम में आ गया। सामान वाले बैग को एक शर्ट पर लगाते हुए सामिर फ्रेश होने की गर्ज से वॉशरूम में चला गया। मीरा चलते हुए विंडो मिरर के सामने आ गई। पर्दा हटाकर बाहर के खूबसूरत मंजर को देखने लगी। शाम का वक्त हो रहा था। चारों तरफ से ढके हुए पहाड़ सफ़ेद चादर ओढ़े हुए थे। दरख्त, लंबे लंबे दरख्तों के ऊपर बर्फ़ की झालर लटक रही थी। कुछ मकामी लोग और कुछ सियाह बाहर चलते फिरते नजर आ रहे थे। वो इस मंजर को बहुत गौर से देखकर मुस्कुरा रही थी। सामिर वॉशरूम से बाहर आया। मीरा को खिड़की के सामने बड़े गौर से बाहर की जानिब देखते हुए वो मुस्कुराया, क्योंकि मीरा के चेहरे पर खुशी मुस्कुराहट बनकर बिखरी हुई थी, जिसको देखकर उसे सुकून मिला था। वो चलता हुआ मीरा की पीठ पर अपना सिरा रखते हुए उसके गिर्द अपने मजबूत बाहों को घेरा बनाकर खड़ा हो गया। शामिर के यूँ अचानक आने से मीरा दुबक कर रह गई। मीर, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मीरा ने मध्यम सी आवाज़ में कहा। मीर की जान, तुम्हें मेरे होते हुए डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा मीर हर वक्त अपनी जान की हिफाजत करने के लिए मौजूद है। मेरे होते हुए मेरी बीवी को गर्म हवा भी छू नहीं सकती। तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी पहली मोहब्बत हो।
मेरा तुम मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हो। वो कहते हुए मेरा के बाल गर्दन से हटाकर उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी टिकाकर खड़ा हो गया। सामिर की बातों में एक अलग तहफ़्फ़ुज़ को मेरा महसूस कर रही थी। मेरा जी, आपको मुझ पर यकीन है कि मैं आपकी हिफाज़त कर सकता हूँ। वो बहुत गहरी सोचते हुए बोला। जी, मेरा जी से काम नहीं चलेगा। मुझे लफ्ज़ों में बताओ कि तुम मुझ पर यकीन करती हो, मुझे इस काबिल समझती हो कि मैं अपनी बीवी की हिफाज़त कर सकता हूँ। जी, मुझे यकीन है आप मेरी हिफाज़त कर सकते हैं क्योंकि आप एक पुलिस वाले हैं। मेहरा के मासूम जवाब पर सामिर जो गहरी सोच में था, हंसने लगा। मेरी जान, पुलिस वाला मैं दुनिया के लिए हूँ, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम्हारी हिफाज़त में एक शौहर की तरह करना चाहता हूँ जो मुझ पर फ़र्ज़ है। मैं इस यकीन के बारे में पूछ रहा हूँ। आपकी इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरी समझ में नहीं आती। प्लीज़ आप सीधे सीधे लफ्ज़ों में मुझे बताया करें कि आप क्या कहना चाहते हैं। मेरा को ये सवाल इसके अकल से बड़ा लग रहा था। हाय सदके जाऊँ तुम्हारे भाई की परवरिश पर, जिसने मेरी बीवी को इतनी अच्छी परवरिश थी कि मेरी बीवी दुनियादारी से कितनी दूर है। एक आम सा सवाल मेरी जान तुम्हें इतना बड़ा लग रहा है। बस जोर दो अपने छोटे से दिमाग पर, वक्त आने पर कुछ समझ जाओगी। रूम का दरवाज़ा खटका था। शामिर मेरा से दूर होते हुए दरवाज़ा खोलकर वेटर से खाने वाली ट्रॉली अंदर लेकर आया। मेरा फ्रेश होकर आओ, मैं खाना निकालता हूँ। गर्म खाने की खुशबू से मेरा की भूख भी भड़क उठी थी। वो जल्दी से फ्रेश होने वॉशरूम चली गई। मैं ऑफिस से वापसी पर तुम्हें लेने आ जाऊँगा, तैयार रहना। रोमांचा का सुबह सुबह ही मेरठ को मैसेज वसूल हो चुका था। मेरा मैसेज पढ़कर मुस्कुरा रही थी। पता नहीं साहब ने कल की रात कैसे गुजारी है। मेरा मुस्कुराते हुए सोच रही थी। उषा की मोहब्बत को पाकर पूरी तरह से खुद को मुकम्मल महसूस कर रही थी। इतराते हुए खुद को आईने में देखकर रूम से निकलकर अपने पापा के पास चली गई। वो आज रोमांचा के आने से पहले वाला सारा वक्त अपने मामा के साथ गुजारना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि अब दोबारा सा कभी उसे रात को यहीं पर रुकने नहीं देगा। वो एक रात में ही सा की बेताबियाँ देख चुकी थी। रोमांचा ऑफिस के लिए तैयार होकर अपने रूम से निकला। आज काफ़ी दिनों बाद वो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करना चाहता था, मगर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए उन दयाल वालों को देखकर इसका मूड सुबह सुबह ही ख़राब हो गया था। वो गुस्से से अपने रूम की जानिब वापस आ रहा था, अपने वॉलेट वगैरह उठाने के लिए, ताकि बिना नाश्ता किए ही वापस जा सके। मगर इसकी अम्मी जान की आवाज़ आई, जिस पर वो वापस पलटने पर मजबूर हो गया। रोमान, तुम्हारे ताया तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। रोमान सा के रुकने पर इसकी माँ ने वजाहत दी। अम्मी जान, मैं इनकी कोई बात भी नहीं सुनना चाहता। रोमान सा ने नागवारी से जवाब देते हुए वापस अपने कमरे का रुख लेना चाहा। रुक जाओ रोमान, मेरा हुक्म है। रोमान सा की माँ ने फिर से आवाज़ दी। इससे पहले कि रोमान सा कुछ और बोलता, रोमान सा का ताया अपने कुर्सी से उठता हुआ बामुश्किल चलकर रोमान सा के पास आकर खड़ा हो गया और नीचे झुकता हुआ उसके कदमों में बैठ गया। रोमान बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने गुनाहों पर बहुत शर्मिंदा हूँ। वो रोते हुए रोमान सा के कदमों पर बैठा हुआ था। रोमान बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने गुनाहों पर बहुत शर्मिंदा हूँ। वो रोते हुए रोमान सा के कदमों पर बैठा हुआ था। रोमान सा जितना भी सख्त दिल बन जाए, मगर इसका दिल अंदर से बहुत सॉफ्ट था और इसकी माँ ने इसकी ऐसी परवरिश न की थी कि वो किसी बुजुर्ग को अपने कदमों में बैठाए। रोमान सा ने अपने ताया को कंधे से उठाते हुए खड़ा कर दिया। इनकी हालत इस वक्त बड़ी नासाज थी। जर्द रंग जो इस बात की दलील थी कि वो हर गुजरते लम्हे के साथ इस खतरनाक बीमारी की वजह से मौत के करीब जा रहे थे। रोमान बेटा, मुझे माफ़ कर दो, शायद तुम मुझे माफ़ कर दो तो मैं आसानी से मर सकूँ। वो रो रहे थे। प्लीज़ आप रोए नहीं, मैं आपको माफ़ कर चुका हूँ। रोमान सा ने सरसरी अंदाज से कहा और उन्हें पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठा दिया। इसके दूसरे ताया और दोनों ताया भी आकर पास खड़ी हो गई और माफ़ी मांगने लगी। रोमान सा जो इतने सालों से सख्त बना हुआ था, इनको यूँ अपने सामने हाथ जोड़े खड़े देखकर उनको माफ़ करने पर मजबूर हो गया। ठीक है, मैंने आपको माफ़ किया, मगर इससे ज़्यादा की उम्मीद मुझसे मत रखिएगा। शायद आप लोगों के साथ मैं दिली मोहब्बत वाला रिश्ता कभी कायम नहीं कर सकूँगा, क्योंकि मेरे बचपन पर आप लोगों के सब जुमलों की मेहर इस तरह से फ्यूज़ थे कि मैं चाहकर भी इनको मिटा नहीं सकता। वो कहते हुए अपने रूम की जानिब चल दिया। भाई साहब, आप लोग परेशान न हो। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि एक न एक दिन रोमान का दिल आप लोगों के लिए बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। रोमान सा की माँ सब कुछ समझते हुए भी रोमान सा के यूँ जानिब से शर्मिंदा से अंदाज से बोली। नहीं भाभी, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। इसने हमें माफ़ कर दी, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। हमने जो कुछ आप लोगों के साथ किया है, इसके बाद हमें तो माफ़ी की उम्मीद ही नहीं थी। रोमांसा की माँ की बात पर रोमांसा के बड़े ताया जो महक के वालिद थे, शर्मिंदा होते हुए बोले।
ایسے بھی کہ جان میرے علاوہ اتنی گہری سوچ میں کس کو سوچا جا رہا ہے، بالکل اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا پوچھ رہا تھا۔ سامر جو میرا کو سویا ہوا چھوڑ کر کچھ دیر باہر واک کرنے کے لیے گیا تھا۔ سامر میرا کی صحت کو لے کر بہت فکر مند تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میرا اچھی طرح سے اپنی نیند پوری کر لے تاکہ اس کا اسٹریس لیول کم ہو سکے۔ وہ جب واپس آیا تو میرا اپنے خیالوں کی دنیا میں گم ونڈو میرے سے باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی گہری سوچ میں تھی کہ اسے روم میں آئے سامر کا بھی پتہ نہیں چلا۔ میں کچھ بھی نہیں سوچ رہی تھی، وہ گہری سوچ سے نکلتے ہوئے گھبرائی ہوئی بولی۔ میرا کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں یہ بات ثابت کر رہی تھی کہ وہ اپنے دماغ میں کسی ٹینشن والی بات کو ہی سوچ رہی ہے۔ سامر کے بلانے پر میرا کا ریاکٹ ایسے تھا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ گھبراتے ہوئے جواب دے کر سامر سے دور ہونے لگی۔ میرا کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسی بات جو میری جان تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے؟ تم مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے بتا سکتی ہو، میں تمہارے ہر دکھ کا دعویٰ کر دوں گا، مگر تم مجھے بتا تو صحیح کہ آخر کون سی بات ہے جو تمہیں اس قدر ڈپریشن میں لے جاتی ہے؟ سامر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کھڑا کرتے ہوئے بڑی نرمی سے کہا۔ میرا نے پلکیں اٹھا کر سامر کی جانب دیکھا۔ سامر کا دل تڑپ سا گیا تھا۔ میرا کی آنکھوں میں درد اور ویرانی دیکھ کر وہ سب کچھ جان تو چکا تھا، مگر وہ میرا پر خود بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ میرا کا اعتماد جیت کر اسے وہ مان دینا چاہتا تھا کہ میرا خود سے اپنے درد اس کے ساتھ شیئر کرے۔ اس کی بھیگی پلکیں اور کانپتے ہونٹ دیکھ کر سامر کے دل میں درد کی ٹیس اٹھنے لگی تھی۔ وہ میرا کو قریب لاتے ہوئے بازو کے دائرے میں لے کر سینے سے لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ میرا جان، کیوں خود پر اتنا ظلم کر رہے ہو؟ ایک بار مجھ پر اعتماد کر کے بتاؤ تو صحیح کہ کون سی بات ہے تمہارے دل میں جو تمہیں سکون نہیں لینے دیتی؟ کیوں تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ کیوں تم اپنے درد کو اپنے اندر رکھ کر اسے ناسور بنا رہی ہو؟ سامنے روانی سے بولتا چلا گیا۔ وہ اپنے چہرے سے مضبوط سینے میں چھپائے ڈری ہوئی بچی کی طرح رونے لگی۔ میرا آئی لو یو، بہت پیار کرتا ہوں میں تم سے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہیں مجھ سے دور کر سکتی، اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے میں تم سے پیار کرنا کم کر سکتا ہوں۔ اس ڈر کو اپنے دل سے نکال دو۔ مجھے بتاؤ میری جان کی کون سی بات ہے تمہیں اذیت دے رہی ہے؟ میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارے ہر درد کی دوا بن جاؤں گا۔ وہ اتنی نرمی اور محبت سے یہ جملے بول رہا تھا کہ میرا کے رونے میں تیزی آنے لگی۔ اس کی ہچکیاں تیز ہونے لگی تھی۔ اس کے سینے پر اپنے سر کو زور سے ٹکائے ہوئے اس کے سر کو مٹھیوں میں پکڑے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود اس کے اندر کے درد کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ سامر نے باہوں کی گرفت سخت کرتے ہوئے احساس دلایا کہ وہ ہے اس کے ساتھ ہے، مگر اسے رونے دیا تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ پتہ نہیں کتنی دیر وہ یوں ہی ہچکیوں سے روتی رہی تھی۔ میر، اس کی آنسو میں ڈوبی ہوئی مدھم سی آواز سامر کے کانوں سے ٹکرائی تو سامر اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے اسے محسوس کر رہا تھا۔ بولو میر کی جان، اس کی مدھم سی آواز کا جواب سامر نے بڑے محبت بھرے لہجے سے دیا۔ کیا آپ ہمیشہ مجھ سے ایسے ہی پیار کریں گے؟ بڑا سوالیہ سا انداز تھا اس کا۔ کیوں میر کی جان کو کوئی شک ہے؟ سامر اب اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ آپ کو اگر میرے بارے میں کچھ پتہ چلے تو آپ مجھ سے پیار کرنا چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ اپنے سوالوں میں شاید سامر کے اعتماد بھرے جواب سننا چاہتی تھی۔ میر کی جان، میں تم سے اتنا ہی محبت کرتا ہوں کہ کوئی بھی دنیا کی ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے میں تم سے محبت کرنا چھوڑ سکوں۔ اگر میری جان کہے تو اپنے دل چیر کر دکھا دو جس پر صرف میرا اور میرا ہی لکھا ہوا ہے۔ کیونکہ میری بیوی مجھ پر اعتماد نہیں کر پا رہی، مجھے افسوس ہے خود پر کہ میں تمہیں اعتماد جتنے میں ناکام رہا ہوں۔ کیوں تمہیں میری نظروں میں اپنے لیے بے پناہ محبت نظر نہیں آ رہی؟ میرے کے لہجے میں بہت درد تھا۔ مجھے لگتا ہے میں بہت برا شوہر ہوں۔ نہیں میر، ایسا مت بولو، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت زیادہ اچھے ہیں، بہت بزور دیتے ہوئے بولی۔ سامر کی بات پر میرا نے اپنا چہرہ پیچھے کرتے ہوئے سامر کی جانب دیکھا۔ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ میری جان، اگر میں اچھا ہوں تو آج مجھے اپنا ہر دکھ بتا دو، تو تم اپنی ساری ٹینشن، سارے دکھ مجھے دے دو، میں بدلے میں اپنی جان کی زندگی میں خوشی اور محبت کے رنگ بھر دوں گا۔ سامر نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے ہوئے بڑی محبت سے انداز سے کہا۔ میرا کتنی دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میرا کی آنکھوں میں آنسو روانی سے بہتے جا رہی تھی۔ میر، اگر میں آپ کو سچ بتا دوں گی تو آپ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے، وہ روتی ہوئی آوازوں میں لفظوں کو توڑتے ہوئے بولی۔ میر کبھی اپنی جان سے نفرت کر ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس کی گھنی پلکوں سے ایک آنسو کو بڑی محبت سے چوم رہا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں میر، میں آپ کے لائق نہیں ہوں۔
اس کا فیصلہ تم مجھے کرنے دو، اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ تم سے زیادہ لائق ہم سفر مجھے مل ہی نہیں سکتا تھا۔ میرا آپ میری حقیقت جانیں گے تو اپنا فیصلہ بدل لیں گے۔ آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آواز میں بے یقینی کے الفاظ لیے ہوئے بولی، میری جان، جب انسان کسی کو دل و جان سے چاہتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی حقیقت معنی نہیں رکھتی۔ معنی رکھتا ہے تو صرف اس انسان کا ساتھ۔ مجھے تم چاہیے ہو، تمہاری محبت چاہیے، تمہارا ساتھ چاہیے۔ ماضی کی تلخی یادوں سے باہر آ جاؤ میرا، میں تمہارے مجرم کو اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گا، مگر تم اس کالے عکس کی پرچھائی ہمارے آنے والی خوشیوں پر مت ڈالو۔ میرا، میں نے زندگی میں ضرور کچھ نیک کام کیا ہوگا جو خدا نے تمہیں میری نصیب میں لکھ دیا۔ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ خدا نے مجھے اتنی معصوم اور پاکیزہ بیوی دی۔ میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر محبت بھری نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ پھر میں پاکیزہ نہیں ہوں؟ کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولی، میرا آج کے بعد تم اپنے بارے میں ایسے کبھی نہیں کہو گی۔ سامر کے کہنے کے انداز میں ایک تڑپ تھی۔ میرا، آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کسی کی زندگی میں اس طرح شامل نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر آپ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا کہ میں آپ کو کچھ سمجھا یا بتا سکتی، اور میرے اندر کا سچ مجھے ہر وقت جھنجھوڑے رکھتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس سچ کو جاننے کا آپ کا پورا حق ہے، مگر آپ کو حقیقت بتا کر میں آپ کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی۔ میرا کے منہ سے آخری الفاظ سن کر سامر کے دل کو تسکین ہوئی کہ میرا اسے کھونے سے ڈرتی ہے۔ میرے کو پوری طرح سے ابھی تک تم نے جانا نہیں ہے میری جان، میرے کبھی بھی تم سے دور نہیں ہو سکتا۔ اس ڈر کو اپنے ذہن سے پوری طرح سے نکال دو۔ آپ ایک بار بیٹھ کر میری ساری حقیقتیں جان لیں، اس کے بعد آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے۔ میرا، تمہیں ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مجھے تمہارے منہ سے کوئی حقیقت نہیں سنی، میں ساری حقیقت سے واقف ہوں، اور اگر پھر بھی تمہارے دل کو مجھے حقیقت بتا کر سکون ملتا ہے تو بتاؤ، تمہارا میرے سننے کے لیے تیار ہے، مگر کوئی بھی حقیقت میرے پیار پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ میرے لیے تم وہی میرا رہو گی جس کو پہلی نظر میں دیکھ کر میرے دل نے قبول کیا۔ میری آنکھوں نے تمہیں قریب کرنا چاہا، میرے دل نے تمہاری قربت کی تمنا کی، مگر تم اپنے تسکین کے لیے مجھے بتاؤ تاکہ تمہارا دل ہلکا ہو جائے۔ جس ڈر کو تم نے سالوں سے اپنے اندر دبا کے رکھا، اس ڈر کو آج پوری طرح سے نکال دو میرا اپنے دل کا درد سنانا شروع ہوئی تو ہچکیوں کے ساتھ روتی ہوئی اس کے گلے سے لگی اپنا سارا دکھ سناتی چلی گئی۔ وصیت کی قلم سے لکھا ہوا وہ تاریخ دن جس کو وہ بچپن سے لے کر جوانی تک بھول نہیں سکے تھے، اس کا سارا معصوم بچپن یوں ہی ڈرتے ہوئے گزر گیا۔ آج بھی اس کی روح کانپ جاتی تھی وہ بھیانک دن یاد کر کے۔ وہ تو اس وقت اتنی معصوم تھی کہ شاید کبھی اپنا درد بھی کسی کو بیان نہ کر پاتی، کسی کو بتانے کی تو اس میں ہمت نہیں تھی۔ میرا شروع سے ہی سائے اور سائے میں رہنے والی بچی تھی، اور حادثے نے اس کی شخصیت کو پوری طرح سے ختم کر دیا۔ رومان شاہ نے اس کے اندر اعتماد بھرنے کی جو کوشش کی تھی، اس سے کچھ بہتری تو آئی، مگر وہ کبھی بھی زیادہ لوگوں سے گھل مل نہیں سکی تھی۔ اپنے آنسوؤں کے روان میں وہ سامر کو اپنے درد سناتے چلی گئی۔ اس کا درد سن کر سامر کا دل پھٹ رہا تھا۔ سامر اس کے کانپتے ہوئے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے کھڑا تھا، وہ اپنا سر سامر کے سینے پر رکھے ہوئے کھڑی بتاتے ہوئے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ سامر کو اس کے اندر کی ڈری ہوئی لڑکی صاف نظر آ رہی تھی، جو اس وقت بھی اپنے ساتھ ہونے والے گھناؤنے واقعے کو بتاتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے، اس دن جب بھائی نے دیکھا تو وہ پہلی بار نہیں تھا۔ اس گھٹیا انسان نے اس طرح کی حرکتیں کئی بار پہلے بھی کی تھی۔ میں امی اور بھائی کو بتانا چاہتی تھی، مگر مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہیں بھائی اور امی مجھے ہی غلط نہ سمجھیں، اور وہ کمینہ مجھے ہمیشہ ڈرا کر چپ کروا دیتا تھا۔ میں بہت بے وقوف تھی جو کبھی اپنے دل کی بات امی اور بھائی سے کہہ نہیں سکی۔ وہ کہتے ہوئے سسک کر رو رہی تھی۔ بھائی اس دن فرشتہ بن کر گھر آئے تھے اور مجھے اس درندے کے چنگل سے چھڑا کر اپنی حفاظت کی دنیا میں لے آئے۔ اس دن کے بعد بھائی نے میری اتنی حفاظت کی کہ میری طرف اٹھنے والی ہر نظر کو پہلے بھائی کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس کے باوجود بھی کبھی خود میں اتنی ہمت جمع نہیں کر سکی کہ میں بتاتی کہ اس گھٹیا انسان نے میرے ساتھ کیا کیا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بتا کر بلند آواز میں رونے لگی۔ سامر کو بہت بڑا دھچکا لگا تھا یہ سن کر کے، مگر اس نے میرا پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اسے پتہ تھا کہ اتنی مشکل سے جو اس نے بتانے کی تھوڑی ہمت آئی ہے، وہ آج کے بعد اس ہمت کو کبھی اکٹھا نہیں کر پائے گی۔ سامر نے جتنا سوچا کہ اس سے کہیں زیادہ برا میرا کے ساتھ ہوا تھا، اس سے بڑھ کر اسے یہ بات بہت تکلیف دے رہی تھی کہ اتنے سالوں سے میرا اپنے اندر ہی اندر گھٹتی رہی، وہ کسی کو بتا نہیں سکی۔ میرا کو اپنے سر سے لگائے ہوئے وہ کتنی دیر چپ کھڑا رہا تھا۔ بس میرا، بس اب تم اپنا سارا درد مجھے سنا دیا۔ آج کے بعد تم اس بھیانک حادثے کو یاد کر کے کبھی نہیں رو گی۔ میرا وعدہ ہے کہ
तुम्हारे मुजरिम को इसके अंजाम तक पहुंचा कर ही सांस लूँगा। वो कहते हुए अपने मजबूत बाजुओं के गिर्द इसके गिर्द और भी कस गया। आज से वो तुम्हारा नहीं मेरा मुजरिम है। और अपने मुजरिमों को ऐसे पे सामिर कभी माफ़ नहीं करता। वो अपने दांतों को पीसते हुए बोला। वो अपना सारा दुख सामिर को सुनाकर पता नहीं कितने सालों बाद असुकून की नींद सोई रही थी। इसके सीने पर सर टुकाए हुए वो कितनी पुरसुकून लग रही थी। सामिर तकिए पर सर रखे हुए सीधा लेटा हुआ, एक हाथ सर के नीचे रखे और दूसरा इसके गिर्द लपेटे हुए था। सामिर उसके मासूम चेहरे को बहुत गहरी नज़रों से देख रहा था। जहाँ पर इस वक्त भी मासूमियत ही मासूमियत दिखाई दे रही थी। सामिर को ये सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था कि इस दरिंदे के इतने सालों बाद जब ये बच्ची थी, किसी ज़मीर मान गया जो इस मासूम सी गुड़िया को अंधेरे की दलदल में धकेल गया। सामिर ने अपने लब इसके माथे पर रखते हुए अकीदत से चूम लिया। मीर कभी भी अपनी जान से नफरत कर ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। वो उसकी आंखों पर अपने लब रखते हुए उसकी घनी पलकों से एक आंसू को बड़ी मोहब्बत से चुन रहा था। आप बहुत अच्छे हैं मीर, मैं आपके लायक नहीं हूँ, इसका फैसला तुम मुझे करने दो। अब मेरा फैसला ये है कि तुमसे ज़्यादा लायक हमसफ़र मुझे मिल ही नहीं सकता था। मीर, आप मेरी हकीकत जानेंगे तो अपना फ़ैसला बदल लेंगे। आंसुओं से भीगी हुई आवाज़ से बेयकीनी के अल्फाज लिए बोल रही थी। मीर की जान, जब इंसान किसी को दिल व जान से चाहता है तो वहाँ पर कोई भी हकीकत मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो सिर्फ इस इंसान का साथ। मुझे तुम चाहिए, तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। माजी की तल्ख यादों से बाहर आ जाओ मेरा। मैं तुम्हारा मुजरिम को अपने हाथों से सजा लूँगा, मगर तुम इस काले अक्स की परछाई हमारे आने वाली खुशियों पर मत डालो। मेरा, मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नेक काम किया होगा जो खुदा ने तुम्हें मेरे नसीब में लिख दिया। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि खुदा ने मुझे इतनी मासूम और पाकीज़ा बीवी दी। मैं अपने रब पर जितना शुक्र अदा करूँ कम है। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरकर मोहब्बत भरी नज़रों से इसके चेहरे पर मरकूज़ किए हुए था। मीर, मैं पाकीज़ा नहीं हूँ, कांपते हुए होठों से बोली। मीरा, आज के बाद तुम अपने बारे में ऐसे कभी नहीं कहोगी। सामिर के कहने के अंदाज में एक तड़प थी। मीर, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं किसी की ज़िंदगी में उस तरह शामिल नहीं होना चाहती थी, मगर आपने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं आपको कुछ समझा या बता सकती। और मेरे अंदर का सच मुझे हर वक्त झंझोड़ने लगता है। मुझे लगता है कि इस सच को जानने का आपको पूरा हक है, मगर आपको हकीकत बताकर मैं आपको खुद से दूर नहीं करना चाहती। मीरा के मुँह से आखिरी अल्फाज सुनकर सामिर का दिल को तस्कीन हुई कि मेरा उसे खोने से डरती है। मीर को पूरी तरह से अभी तक तुमने जाना नहीं है मेरी जान। मीर कभी भी तुमसे दूर नहीं हो सकता। इस डर को अपने जहन से पूरी तरह से निकाल दो। आप एक बार बैठकर मेरी सारी हकीकत जान लें, इसके बाद आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। मीरा, तुम्हें अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि मुझे तुम्हारे मुँह से कोई हकीकत नहीं सुननी। मैं सारी हकीकत से वाकिफ़ हूँ, और अगर फिर भी तुम्हारे दिल को मुझे हकीकत बताकर सुकून मिलता है तो बताओ। तुम्हारा मीर सुनने के लिए तैयार है, मगर कोई भी हकीकत मेरे प्यार पर असरअंदाज नहीं हो सकता। मेरे लिए तुम वही मीरा रहोगी जिसको पहली नज़र में देखकर मेरे दिल ने कबूल किया। मेरी आंखों ने तुम्हें गरीब करना चाहा, मेरे दिल ने तुम्हारी गुर्बत की तमन्ना की, मगर तुम अपने तस्कीन के लिए मुझे बताओ ताकि तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। जिस डर को तुमने सालों से अपने अंदर दबा के रखा हुआ है, इस डर को आज पूरे तरह से निकाल दो मीरा। मेरा अपने दिल का दर्द सुनाना शुरू हुई तो हिचकियों को साथ रोती हुई उसके गले से लगी अपना सारा दुख सुनाती चली गई। अजियत के कलम से लिखा हुआ वो तारीख दिन जिसको वो बचपन से लेकर जवानी तक भूल नहीं सकी थी। इसका सारा मासूम बचपन यूं डरते हुए गुजर गया। आज भी इसकी रूह कांप जाती थी वो भयानक दिन याद करके। वो तो इस वक्त इतनी मासूम थी कि शायद कभी अपना दर्द भी किसी को बयान ना कर पाती। किसी को बताने की तो इसमें हिम्मत नहीं थी। मेरा शुरू से ही शाय और सहमे सहमे रहने वाली बच्ची थी, और हादसे ने उसकी शख्सियत को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। रोमांसा ने इसके अंदर एतमाद भरने की जो कोशिश की थी, इससे कुछ बेहतरी तो आई, मगर वो कभी भी ज़्यादा लोगों से घुल मिल नहीं सकी थी। अपने आंसू की रवानी में वो सामिर को अपना दर्द सुनाती चली गई। इसका दर्द सुनकर सामिर का दिल फट रहा था। सामिर इसके कांपते हुए वजूद को अपने बाहों में समेटे खड़ा था। वो अपना सर सामिर के सीने पर रखे हुए खड़ी बताते हुए मुसलसल रोए जा रही थी। सामिर को इसके अंदर की डरी हुई लड़की साफ नज़र आ रही थी, जो इस वक्त भी अपने साथ होने वाले घिनौने वाक़यात को बताते हुए डर रही थी। मीर, आपको पता है कि इस दिन जब भाई ने देखा तो वो पहली बार नहीं था। इस घटिया इंसान ने इस तरह की हरकतें कई बार भी की थी। मैं अम्मी और भाई को बताना चाहती थी, मगर मुझ में हिम्मत नहीं थी। मुझे डर लगता था कहीं भाई और अम्मी मुझे ही गलत ना समझ लें।
اور وہ کمینہ مجھے ہمیشہ ڈرا کر چپ کروا دیتا تھا۔ میں بہت بیوقوف تھی جو کبھی اپنے دل کی بات امی اور بھائی سے کہہ نہیں سکی۔ وہ کہتے ہوئے سسک کر رو رہی تھی۔ بھائی اس دن فرشتہ بن کر گھر آئے تھے اور مجھے اس درندے کے چنگل سے چھڑا کر اپنی حفاظت کی دنیا میں لے آئے۔ اس دن کے بعد بھائی نے میری اتنی حفاظت کی کہ میری طرف اٹھنے والی ہر نظر کو پہلے بھائی کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس کے باوجود بھی میں کبھی خود میں اتنی ہمت جمع نہیں کر سکی کہ میں بتاتی کہ اس گھٹیا انسان نے میرے ساتھ کیا کیا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بتا کر بلند آواز میں رونے لگی۔ سامر کو بہت بڑا دھچکا لگا تھا یہ سن کر، مگر اس نے مرحا پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اسے پتہ تھا اتنی مشکل سے جو اس میں بتانے کی ہمت سے پیدا آئی ہے، وہ آج کے بعد اس ہمت کو کبھی اکٹھا نہیں کر پائے گی۔ سامر نے جتنا سوچا تھا اس سے کہیں زیادہ برا مرحا کے ساتھ ہوا تھا۔ اس سے بڑھ کر اسے یہ بات بہت تکلیف دے رہی تھی کہ اتنے سالوں سے مرحا اپنے اندر ہی اندر گھٹ رہی، وہ کسی کو بتا نہ سکی۔ مرحا کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے کتنی دیر چپ کھڑا رہا۔ بس میرا بس، اب تم نے اپنا سارا درد مجھے سنا دیا۔ آج کے بعد تم اس بھیانک حادثے کو یاد کر کے کبھی نہیں رو گی۔ میرا وعدہ ہے کہ تمہارا مجرم کو اس کے انجام تک پہنچا کر ہی سانس لوں گا۔ وہ کہتے ہوئے اپنے مضبوط بازوؤں کی گرفت اس کے گرد اور بھی کس گیا۔ آج سے وہ تمہارا نہیں میرا مجرم ہے، اور اپنے مجرمی کو اے سی پی سامر کبھی معاف نہیں کرتا۔ وہ اپنے دانتوں کو پیستے ہوئے بولا۔ وہ اپنا سارا دکھ سامر کو سنا کر پتہ نہیں کتنے سالوں بعد آج سکون کی نیند سوئی تھی۔ اس کے سینے پر سر ٹکائے ہوئے وہ کتنی پرسکون لگ رہی تھی۔ سامر تکیے پر سر رکھے ہوئے سیدھا لیٹا ہوا، ایک ہاتھ سے سر کے نیچے رکھے اور دوسرا اس کے گرد لپیٹے ہوئے تھا۔ سامر اس کے معصوم چہرے کو بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جہاں پر اس وقت بھی معصومیت ہی معصومیت دکھائی دے رہی تھی۔ سامر کو یہ سوچ سوچ کر غصہ آ رہا تھا کہ اس درندے کا اتنے سالوں پہلے جب یہ بچی تھی کیسے ضمیر مان گیا جو اس معصوم سے گڑیا کو اندھیروں کے دلدل میں دھکیل گیا۔ سامر نے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے عقیدت سے چوم لیا۔ میری کی جان بس، آج جتنا تم نے رونا تھا رو لیا۔ آج کے بعد میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں کبھی تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ تمہارا ہر دن خوشیوں سے طلوع ہوگا اور ہر شام سورج میری محبت کی پناہوں میں پرسکون غروب ہوگا۔ سامر کتنی دیر اس کے معصوم سوئے ہوئے چہرے کو دیکھتا رہا۔ ایک حسین صبح کے انتظار میں وہ نیند کی وادیوں میں جانے لگا۔ رومان بیٹا، آپ لوگ کھانا کھا کر جانا، آج میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ رومان صاحب جو آفس سے سیدھا میرب کو لینے آیا تھا، اس کے ساتھ ضد کر رہی تھی کہ وہ یہاں سے کھانا کھا کر جائے۔ ٹھیک ہے آنٹی، تھوڑا جلدی کیجیے کیونکہ مجھے گھر جا کر آفس کا ضروری کام کرنا ہے۔ جی جی بیٹا، میں ابھی کھانا لگواتی ہوں، آپ مرحا کے روم میں جا کر فریش ہو کر آ جائیں۔ رومان صاحب مرحا کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ اس کے روم میں آیا فریش ہونے کے لیے۔ ایسا کیا کر رہے ہیں، کوئی دیکھ لے گا تو دیکھ لینے دو، اپنے خود کی ذاتی بیوی سے پیار کر رہا ہوں، کوئی دیکھتا ہے تو دیکھ لے۔ میرب کے روم کی طرف جاتے ہوئے میرب کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود کے قریب کرتے ہوئے کسی اور ہی موڈ میں بولا تھا۔ ہماری اس وقت سا کی آنکھوں اور لہجے سے صاف ٹپک رہی تھی۔ سا پلیز، ماما دیکھ لیں گی تو کیا سوچیں گی، کچھ تو شرم کیجیے۔ میرب شرماتے ہوئے سا کے سینے پر زور دے کر اسے پیچھے دھکیل رہی تھی۔ کچھ نہیں سوچیں گے، بلکہ وہ تو یہی کہیں گی کہ واہ کتنا اچھا، میرا داماد میری بیٹی سے اتنا پیار کرتا ہے۔ سا سوک انداز سے کہتے ہوئے اپنے لب میرب کے لبوں کے قریب لے جانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ میرب نے سا کے منہ پر ہاتھ رکھ کر سا کا یہ منصوبہ ناکام کر دیا۔ سا آپ کتنے بے شرم ہیں، کہیں پر بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ میرب نے مسکراتے ہوئے سا کے کس والے ارادے کو ناکام بنا دیا۔ تینوں لگا دے سونیے ایویں تو میرے کولوں وچ جائے گی، سیر نوجنا ترساوے گی اور اونا آئی تیری جاں دشمن بنے گا۔ سا اب آپ کیا بولے جا رہے ہیں؟ سا کا پنجابی رومانٹک لہجہ میرب کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ آج میں بالکل بھی یہ بتانے کے موڈ میں نہیں ہوں کہ میں نے کیا کہا۔ آج تو میری شدت سے میری بات کا معنی سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جانے سا گھر چلو، تمہیں پورا موقع دوں گا میری اس بات کا مطلب سمجھنے کے لیے۔ سا آپ مجھے دھمکیاں بعد میں دے لیجیے گا، پہلے چل کر فریش ہو جائیں، ماما کھانا پر ہمارا ویٹ کر رہی ہیں۔ میرب اپنی باہوں کو قید کیے ہوئے راہداری کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ چلو میں چل کر میں فریش ہو لیتا ہوں۔ وہ تو کسی اور ہی موڈ میں بولا۔ فریش ہونے کا تو اس کا کہیں سے بھی ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔ میرب جو اس کے آگے آگے چلتی ہوئی روم میں داخل ہوئی تھی، دروازہ ٹھاک سے بند کرتے ہوئے میرب کی کلائی کو پکڑ کر اسے واپس اپنی طرف کھینچ لیا۔ اسے دروازے کے ساتھ لگاتے ہوئے گہری نظروں سے دیکھ کر مسکرایا۔ سا کیا کر رہے ہیں؟ میرب سا کے ارادے کو بھانپتے ہوئے اٹک کر بولی۔ پیار کر رہا ہوں، جو کل رات سے تم نے نہیں کیا ہے۔ جانے سا کل رات تمہارے بنا مجھے کتنی لمبی لگ رہی تھی، آج تم گھر چل کر میری ہر شدت سے اسے محسوس کرنا۔
कहता हुआ मीरा पर दरवाजे के साथ लगा कर उसकी कमर को दोनों साइडों पर सख्ती से हाथ रखते हुए उसकी नजरें बेबाकी से चकोतरा पर मरकूज थी। साहब प्लीज, बहुत बोलती हो तुम। इसके लबों पर उंगली रखकर उसे चुप करवा दिया। कमर की दोनों सीट पर हाथ रखे हुए उसकी चिक्स पर बड़ी नरमी से इस लब रख कर चूम लिया। सर उठाकर इसके चेहरे की जानिब देखा। सा की नज़दीकी से मीरा का दिल धक धक करना शुरू हो रहा था। मीरा अपनी आंखें बंद करके खड़ी हुई थी। सा के लंबे करीने से वो सा के पीछे हटने से बाद भी अपने गाल पर महसूस कर रही थी। वो अपना मुंह उसके बालों में छुपाकर उसकी खूबसूरत गर्दन पर अपने जज्बातों से चूर लबों के नर्म और गर्म लिम्स छोड़ रहा था। इसके लबों की गर्मी से मीरब ने घबरा कर सा के कंधों पर हाथ रख लिया। वो मीरब के बंद आंखों और अपने कंधों पर रखे हुए हाथ देखकर पीछे होता हुआ मुस्कुराया। बेजान मेरे इश्क की तपस में मत बहकिए, फ्रेश होकर आता हूँ, खाना खाकर घर चलेंगे, इसके बाद हमारे रूम में जितना ही बहकना चाहे बहक सकती है। सा की आवाज़ पर मीरब होश की दुनिया में आई। वो सारा मलबा मीरब पर डालकर मुस्कुराता हुआ वॉशरूम की तरफ जा रहा था। सा मैं आपकी जान ले लूँगी। मीरब सा की बात शर्माते हुए चीखी। पूरी इजाज़त है ले लेना, मगर घर जाने का वेट करो। वो शरारती अंदाज से जाता हुआ रुक गया। आँख दबाते हुए बोला। सा के इस अंदाज से मीरब और भी शर्म से लाल हो गई थी। मीर मीरा फजर की नमाज से फारिग होकर सामिर को नमाज के लिए उठा रही थी, जो कि रात को बहुत लेट सोया था। तो इस वक्त बहुत गहरी नींद में एक मीठी आवाज़ को महसूस कर रहा था। मीर उठ जा, नमाज पढ़ ले, नमाज का वक्त ख़त्म हो रहा है। सामिर उल्टा लेटा हुआ गहरी नींद में था। मीरा बेड के पास खड़ी हुई उसे उठा रही थी। ये कि क्या कर रहे हैं? वो शर्माते हुए बोली। सामिर करवट लेकर सीधा होते हुए उसकी कलाई को पकड़कर अपने ऊपर गिरा चुका था। मैं अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूँ। मीरा की नकल उतारते हुए लफ्ज़ों को तोड़कर बोला। मीर जी मेरी की जान। इसके शर्माते हुए लाल टमाटर जैसे चेहरों को गहरी नज़रों से देख रहा था। प्लीज़ छोड़े मुझे। इसके मजबूत सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर नज़रें चुराते हुए बोली। छोड़ने के लिए मैंने थोड़ा पकड़ा है, अब तो सारी ज़िंदगी तुम्हें यूं ही अपने सीने से लगाए रखने का इरादा है। क्यों, आपको कोई काम काज नहीं है, खाना पीना नहीं? वो शरारती लहजे से मुस्कुराते हुए बोली। और सामिर की मोहब्बत को मान पाकर मीरा ने पहली बार सामिर के इतने नज़दीक होते हुए उससे मजाक किया था। काम काज भी कर लूँगा, पहले अपनी खूबसूरत बीवी को जी भर कर प्यार कर लूँ, कहते हुए करवट लेकर उसके ऊपर आ गया। उसके नर्म गालों को बारी बारी अपने हाथों से सहलाते रहा था। मेरा आंखें बंद किए हुए उसके मजबूत हाथों की लिमस को महसूस कर रही थी। इस लिमस में उसे आज अपने लिए तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो रहा था। सामिर के रात को बोले हुए हर अल्फाज ने मीरा को एक नई ज़िंदगी बख्शी थी। आज सुबह मीरा के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आई थी। आज की सुबह मीरा खुद को सालों से देखती हुई इन गंदी नज़रों से महफूज समझ रही थी। आज जिसमें पीड़ित होती हुई गंदी नज़रों के सामने उसके ज़ोहर की मजबूत मोहब्बत खड़ी थी। मेरा बचपन से लेकर आज तक इन वहशत आँखों को रोज़ महसूस करती थी। इन आँखों में दरिंदगी और गंदगी ही गंदगी नज़र आती थी। शौहर की मोहब्बत इतनी ताकत की हामिल होती है, मेरा को आज पता चला था। जिस दर्द को वो इतने साल से दूर नहीं कर सकी, उस दर्द को सामिर की मोहब्बत भरी एक रात की बातों ने उसे दूर कर दिया था। सामिर उसकी गर्दन पर अपने लब रखे हुए लिमस छोड़ते जा रहा था। वो मीरा की किस्म से उठती हुई खुशबू से बहक रहा था। मीर वो गर्दन पर झुका हुआ गंभीर आवाज़ में बोला। मीर फजर की नमाज का टाइम ख़त्म हो रहा है, प्लीज़ उठकर नमाज पढ़ लें। सामिर के खुमारी से भरे लिमस से मीरा के दिल की धड़कनें उथल पुथल हो रही थी। तुमने नमाज़ पढ़ ली? वो अपना चेहरा ऊपर उठाकर पूछ रहा था। जी मैंने पढ़ लिया, आप भी जाकर पढ़ लें। वो अपने ऊपर घटा बनकर लेटे हुए सामिर को अपने हाथ से धकेलते हुए बोली। आप तैयार रहना, हम लोग घूमने चलेंगे। आज मैं अपनी प्यारी बीवी को कश्मीर की सैर करवाऊँगा और उसके बाद रात को आकर अपने गोल्डन नाइट सेलिब्रेट करेंगे। वो इतनी बेबाकी से बोलते हुए मुस्कुराया था, मेरा शर्म से पानी पानी हो गई। इसके इस कदर शर्माए हुए चेहरे को देखकर सारे मीर लुत्फ़ अंदोज़ होकर उसके गाल पर किस करके मुस्कुराता हुआ उठकर खड़ा हो गया। कुछ शर्माना रात के लिए भी रख लेना मेरी जान, क्योंकि रात को तो मैं तुम्हें बहुत सारे मौका दूंगा शर्माने के। आई लव यू बस मेरी जान। इसी तरह से मेरी बातों शर्माते मुस्कुराती रहो, मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। वो मुस्कुराते हुए फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। मेरा वहीं बेड पर लेटी हुई सामिर की मोहब्बत से मुतमईन होकर मुस्कुरा दी। वो सामिर की मोहब्बत भरे लिमस को याद करके शर्माते हुए अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखकर लेट गई। वाह यार, तुम तो बड़े छुपे हुए रिश्तम निकले, मगर तुम्हें समझाते ही रह गया। तुमने चट मंगनी करने का इरादा बना लिया।
साजिब ने अहमद को बताया कि उसने डॉक्टर हुमा का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। वो बहुत जल्द वो दोनों मंगनी करने वाले हैं। इस बात पर अहमद डॉक्टर साजिब की टांग खींच रहा था। जब प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था तब भी तुम्हें तकलीफ थी, और अगर अब कर लिया है तो इसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है। साजिब चिढ़कर बोला। नहीं यार, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे, नाराज़ क्यों हो रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था। अहमद को डॉक्टर साजिब का दिल का हाल पता था, इसलिए इसने फ़ौरन से वजाहत पेश किया गया। डॉक्टर साहब, आजकल आपको गुस्सा कुछ ज़्यादा ही आने लगा है। आप थोड़े कूल रहने की दवा खाया करें। मुझे गुस्सा आता नहीं, तुम जैसे लोग मुझे दिलाते हो। डॉक्टर साजिब का दिल कल मीरा की हालत देखकर बहुत दुखा हुआ था। ऊपर से आमिर की कड़वी बातों उससे और भी आबदीदा कर दिया। साजिब यार, क्या बात है? क्या तुमने डॉक्टर हुमा को किसी प्रेशर में आकर हाँ की है? साजिब के चिढ़े हुए लहजे को देखकर अहमद ने सवाल किया। बस यार, इस बात को छोड़ो, मैंने हाँ कह दी है। अब चाहे मजबूरी में की हो या खुशी में, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? साजिब ने बेहद दुखी अंदाज में जवाब दिया। साजिब, तुम मुझे बताओगे कि आखिर क्या हुआ? अचानक तुम्हारी ना हाँ में कैसे बदल गई? कल मीरा को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लाया गया था। इसकी हालत बहुत ख़राब थी। इसका वो सड़ू शौहर भी साथ में ही था। बिना फिजूल के बातों मेरे साथ मुँह मारी कर गया। ओ ऐसी, तो मुझे अब समझ में आया कि तुमने ऐसी चिढ़ में डॉक्टर हुमा को हाँ कह दिया। यार प्लीज़, अगर हाँ की हो तो पूरी कोशिश करना इस रिश्ते को अच्छी तरह से निभा सको। मेरा तुम्हारा माजी था और डॉक्टर हुमा तुम्हारी आने वाला मुस्तकबिल। तो प्लीज़ माजी की बातों को लेकर अपना मुस्तकबिल ख़राब मत करना। अहमद समझाते हुए कहा। नहीं यार, इतना तो मैं संगदिल नहीं हूँ जो अपने माजी की वजह से हुमा के साथ कुछ भी गलत करूँगा। इतना तो अपने दोस्त पर यकीन रखो। हाँ मगर यार, कल को पता नहीं, मगर आज मैं मेरा को अपने दिल से निकाल नहीं पा रहा। और कल इसकी हालत देखने के बाद तो मुझे और भी अजीब से ख़यालात घेर रखा है। कहीं ना कहीं मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि क्या मेरा अपनी मैरिड लाइफ में खुश है भी या नहीं। मगर फिर मैं अपने दिल को ये सोचकर इत्मीनान दे रहा हूँ कि जिस तरह से इसका अपूर्व शौहर इसके लिए पॉजिटिव हो रहा था, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि वो मेरा से प्यार करता है। अल्लाह करे कि मेरी ये सोच सच साबित हो। वो जहाँ भी रहे खुश रहे। मैं अपनी वजह से इसकी लाइफ में किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहता, इसलिए मैंने शादी करने का फ़ैसला किया है। एक तो मैं रोमांस से पड़ी हुई दोस्ती में दरार को फिर से भरना चाहता हूँ, और दूसरा अगर मीरा के शौहर के दिमाग में कोई शक व सबा हो तो वो ख़त्म हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस मासूम लड़की की ज़िंदगी में कोई हलचल पैदा हो, क्योंकि इस सब में इसकी कोई गलती नहीं। उसे तो ये पता भी नहीं कि कोई शख्स इसके साथ अपनी दुनिया बसाए हुए था। कहते हुए साजिब की आंखें नम हुई थी, जिसको उसने फ़ौरन से छुपा लिया, मगर अहमद इसकी आंखों की नमी देख चुका था। साजिब, तुम परेशान न हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये फ़ैसला आसान नहीं था, मगर मुझे पूरा उम्मीद है कि डॉक्टर हुमा एक बहुत अच्छी हमसफ़र साबित होंगी और आने वाले वक्त में तुम्हें अपने फ़ैसले पर बहुत प्राउड फील होगा। अहमद डॉक्टर साजिब के कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली बख्श अंदाज में बोला। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। डॉक्टर साजिब संजीदा मिजाज से बोला। चलो ठीक है यार, अभी एक काम करते हैं, आज रात को गैदरिंग अरेंज करते हैं मेरे घर पर। अहमद ने डन करने वाले अंदाज से कहा। पहले इस नवाब से तो पूछो कि वो आना चाहता भी है या नहीं। जब से शादी हुई है तो राब्ते ही तोड़ रखे हैं। अब उसे साले की पसंद से शादी नहीं हुई, भाभी ने ज़बरदस्ती की। अगर पसंद करके कर तो लगता है घर के अंदर ही बंद हो जाता, कभी बाहर ही ना आता। डॉक्टर साजिब ने हंसते हुए रोमांसा का जिक्र किया था। रोमांसा की बात करते हुए दोनों कहा लगाकर हंसी थे। आखिर रोमांसा में इन दोनों की जान बसती थी। इनके होने से इन तीनों को दोस्ती मुकम्मल हो जाती, तो उसे ये कैसे भूल सकते थे। रोमांसा और मीरब खाना खाने के बाद फ़ौरन वहाँ से अपने घर के लिए निकल आए थे, मगर गाड़ी में बैठे हुए रोमांसा की नज़रें और ज़बान से मीरब का शर्मा शर्मा कर बुरा हाल हो रहा था। मीरब, मेरी तरफ देखो। रोमांसा की बेबाक नज़रों से तंग आकर मीरब ने अपना रुख मिरर की जानिब करके बैठ गई। मैं नहीं देखूंगी। क्यों नहीं देखोगी? गाड़ी चलाते हुए एक हाथ स्टीयरिंग पर रखे हुए दूसरा हाथ को मीरब की थोड़ी पर रखते हुए इसका रुख अपनी जानिब किया। क्योंकि सा आप बहुत, मीरब कहते हुए रुक गई। मैं बहुत रोमांटिक हूँ, मुझे पता है। इसके सिवा और कुछ तुम मेरी हस्ती के बारे में बताना चाहो तो शौक़ से बता सकती हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रोमांसा मुस्कुराए अंदाज में बोला। सा आपको पता है, जब आप मुझसे नाराज़ रहते थे ना, तब बहुत अच्छे थे। अब तो आप अपने लफ्ज़ों से मेरा आपकी तरफ देखना तक मुहाल कर देते हैं। मीरब शर्म से सुर्ख होते हुए अल्फाजों का बामुश्किल बोली। जाने से आप अब अपना जिगर थोड़ा तगड़ा करो। जब रोमांसा से इश्क करने की हिम्मत की तो उसकी जुनूनी मोहब्बत और बेबाक लहजों को भी सहने को हौसला रखो।
शोक लहजे से कहता हुआ अपने हाथ की पिस की 2 अंगुलियों से उसके गाल सहला रहा था। साहब प्लीज़ गाड़ी सामने देखकर चलाएं। रोमांसा के हाथों की हिम्मत से मीरब के पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। ठीक है, फिर तुम मेरे सामने मेरी गोद में आकर बैठ जाओ, मैं गाड़ी सामने देख कर चला लूँगा। साहब कुछ भी बोल देते हैं आप। मीरब ने शर्माते हुए अपना मुंह पर हाथ रख लिया। प्लीज़ चुप करके गाड़ी चलाएं। ओके फाइन, मेरी तरफ देखो, बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, मगर मेरी एक शर्त है। आप रोमांसा के दिमाग में एक नई तूफानी बात आई। ठीक है, आपकी जो भी शर्त है मैं मानने को तैयार हूँ, मगर साहब इसके बाद आप पूरा रास्ता मुझे बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। मीरब ने बिना रोमांसा के शर्त को सुने हामी भर ली। हाँ मेरी जान, मेरा वादा है कि मैं पूरा रास्ता तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी जान इसके बाद तुम्हें तंग करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। वो मुस्कुरा सा मुंह बनाते हुए हंसकर बोला। मतलब? मीरब को रोमांसा का मुस्कुराता चेहरा देखकर अंदाज़ा होने लगा था कि इसके साके दिमाग में ज़रूर कुछ खिचड़ी पक रही है। मतलब ये है कि मुझे किस चाहिए, तुम दे दो तो मैं पूरे रास्ते तुम्हें तंग नहीं करूँगा। जितना भी तंग करना है फिर घर जाकर ही करूँगा, प्रॉमिस। अपनी गर्दन पर हाथ रखते हुए वादा कर रहा था। जी नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप चुपचाप गाड़ी चलाएं, और ये सड़क है, हमारा बेडरूम नहीं। फिर अब साहब की इस शर्त को सुनने के बाद घबरा उठी थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था कि उसने रोमांसा की शर्त तो सुनी नहीं और जल्दबाजी में हामी भर ली थी। सोच लो मीरा, रोमांसा तुम मुझे मना करके मेरे दिल को भड़का रही हो। गहरी नज़रें इस पर मरकूज किए हुए बोला। साहब इस तरह रास्तों में थोड़ी ऐसे काम किए जाते हैं। मीरा साकिब तीखी नज़रों से डर कर समझाने की बेजा कोशिश कर रही थी, मगर वो ठहरा रोमांसा जिसकी उल्टी खोपड़ी में अपने सिवा किसी की बात नहीं घुस सकती थी। और मीरब के मामले में तो आजकल रोमांसा का दिल बेलगाम हुआ फिरता था। इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाकर देखो, यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है और दूर दूर तक कोई नज़र भी नहीं आ रहा। तुम फिजूल की मजामतें खड़ी कर रही हो, क्यों मेरे रोमांटिक मूड को तबाह करने पर तुली हुई हो। जाने साहब, जब मैं तुम्हें अपनी गुर्बत में चाहूँ तो प्लीज़ मुझे मना करके मेरे दिल को तीस मत दिलाया करो, क्योंकि जिद में आकर रोमांसा वो कर जाता है जो करने के बारे में वो खुद भी नहीं सोचता। मेरी जान, मुझे किस चाहिए, वो अभी और इसी वक्त, ना की गुंजाइश नहीं है। सचमुच जिद पर उतर आया था। ठीक है, आप अपनी आंखें बंद करें। मीरा हथियार डालते हुए मिनमिनाई हुई आवाज़ में बोली। मेरी जान, अगर चलती हुई गाड़ी में आंखें बंद करूँगा तो गाड़ी कैसे चलाऊँगा? वैसे भी आंखें बंद करके किसका मज़ा क्या खाता आएगा? मीरा के पास कोई चारा नहीं था सिवाय रोमांसा की बात के, क्योंकि रोमांसा के तेवर 2 सेकंड में ही बदलने लगे थे। मीरा भी रोमांसा का गुस्सा पूर्ण नहीं कर सकती थी। मीरा अपने बड़े मुश्किल से अपने चेहरा रोमांसा के करीब ले जाते हुए साके गाल पर अपने लब रखकर मासूम सी किसी कर दी। रोमांसा आंखें फाड़े हुए हैरत से मीरब का चेहरा पीछे जाते हुए देख रहा था। वो बड़ी बहादुरी से नन्ही मुन्नी किस करके वापस अपनी जगह पर बदजमान होकर बैठ गई। चेहरे पर तेवर ऐसे थे जैसे बड़ा ही कोई कारनामा अंजाम दे चुकी हो, और शर्माहट ऐसी थी जैसे साग के बेहद करीब उसके बाहों के घेरे में हो। अब क्यों उस तरह मेरी तरफ देख रहे हैं? रोमांसा की फटी फटी नज़रें देखकर मीरब ने हैरानी से सवाल किया। मीरब, ये क्या था? एक हाथ रिंग पर रखे हुए आईब्रो उठाकर हैरानी से पूछा। क्या मतलब सा? किस थी? मीरब ने सा की हैरानी को कम करने के लिए फ़ौरन से बताया। क्या था? सा ने दोबारा से कंफर्म करना चाहा। वाकई यही एक किस थी। सा बार बार मुझसे नहीं बताया जाएगा, मुझे शर्म आती है। मीरब ने शर्माते हुए नज़रें झुका ली। रोमांसा, शर्म आनी चाहिए इस बात पर नहीं कि तुमने किस दी है, बल्कि इस बात पर कि तुमने दी है उसे किस तो बिल्कुल नहीं कह सकते। मैं तुम्हें 4-5 साल का छोटा सा बच्चा लगता हूँ जो तुम मुझे हाथ चुन्नी मुन्नी से गाल पर किस देकर खुश हो लोगी? साहब अपने मूड के मुताबिक किस ना मिलने पर गुस्सा ही आ गया था। इसने तो मीरब के किस अपने लिप्स पर सोच कर रखी थी, पर यहाँ तो मीरब जी गाल पर किस करके बहुत एहसान जताने वाले अंदाज में बैठी हुई थी। साहब प्लीज़ नाराज़ मत हो, मैं घर जाकर आपको आपकी मर्जी के मुताबिक किस दे दूँगी। मीरब रोमांसा का ख़राब मूड देखकर जल्दी से बोली। तुम्हें घर जाकर इतनी जहमत करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो कुछ चाहिए होगा वो मैं खुद ले सकता हूँ। तुम अपने एहसान अपने पास रखो। रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया है तुमने। मीरब की सोच से कहीं ज़्यादा सा इस वक्त भड़क उठा था। बाकी का सारा रास्ता खामोशी से कटा, क्योंकि मीरब ने 1-2 बार नज़रें उठाकर सा की जानिब देखा, मगर वहाँ पर सब तासुरात देखकर वो बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मीर प्लीज़ सामने से हटे, मुझे तैयार होने दे। मीरा ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी हुई तैयार हो रही थी और सामने ड्रेसिंग मिरर के साथ एक लगाए हुए खड़ा उसे मोहब्बत भरी गहरी नज़रों से देख रहा था। एक तो सामने उससे पहले ही पैंट के साथ शर्ट पहनाकर ऊपर
लंबा कोट पहना दिया था। मीरा ने ऐसी ड्रेसिंग कभी नहीं की थी, इसलिए वो पहले ही बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। ऊपर से सामिर का अपनी ड्रेसिंग के साथ टिक लगाए हुए खड़े से गहरी नज़रों से देखे जा रहा था। मीरा इसकी नज़रों से बहुत कंफ्यूज हो रही थी। मेरी जान, मैंने तुम्हें तैयार होने से रोका तो नहीं है? अगर ये बंदा नाचिस खड़ा हुआ अपनी बीवी को देखकर दूर से अपना दिल खुश कर रहा है, इसमें तुम्हारा क्या चाहता है? मेरी नज़रें तुम्हारे हुस्न का सदका उतार रहे हैं। वो बहकी हुई नज़रों से देखकर खुमारी भरी लहजे में बोलता हुआ उसके करीब आ रहा था। मेरा इसके बढ़ते हुए कदमों को देखकर कदम पीछे की जानिब उठाने लगी। सामिर ने आगे बढ़कर इसकी कलाई को मजबूती से थाम लिया। झटके से उसे अपनी जानिब खींचते हुए उसकी बिस्त को अपने सीने से लगाकर अपने लब उसके नाजुक से गर्दन पर रखकर एक मोहब्बत भरा लिमस छोड़ा। नीर नहीं। सामिर के यूं कलाई थामकर खींचते हुए उसे अपने साथ लगाने से मीरा के चेहरे पर डर के वही तासुरात जाहिर होने लगे थे। मीरा, मेरी जान, तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत, मेरी मोहब्बत हो। एक तो बात मोहब्बत से बढ़कर इश्क की गहराइयों तक पहुंच चुकी है। मेरी जान, मेरी मोहब्बत को दरिंदे की वहशत से मत मशाबा दो। मैं तुम्हारा महरम हुआ, तुम पर हक इस खुदा ने दिया है। तुम्हें छूना, तुम्हारे करीब आना, तुमसे रिश्ता बनाना, इन सब की इजाज़त मुझे हमारा खुदा देता है। निकाह के दिन बोलो की अहमियत को समझो। मेरा प्लीज़, मेरा एक कदम मेरी जानिब बढ़ाकर तो देखो। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से थाम लूँगा। सिर्फ एक कदम मेरी मोहब्बत को दहलीज पर रखो। मैं तुम्हें अपनी चाहत के तख्त पर बैठा लूँगा। एक कदम मेरी जानिब बढ़ाओ, मैं तुम्हें अपने अंदर संभालूँगा। मगर जब तक तुम पूरे दिल से मेरी होने के लिए तैयार नहीं हो, मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मैं तुमसे शादी ज़बरदस्ती की, मगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला तुम्हारा होगा। मैं मोहब्बत में ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। वो मीरा के हाथ को छोड़ते हुए दूर हुआ। मीर, मैं आपको नाराज़ नहीं करना चाहती। मैं आपको कैसे बताऊँ कि डर मुझे आपकी जानिब कदम बढ़ाने ही नहीं देता। मीरा ने बेचैन होकर जाते हुए सामिर का हाथ थाम लिया। इसने अपनी बात को बड़े शर्मिंदा अंदाज से कहा। कहते हुए इसकी आंखों से बेख्तियार आंसू छलक कर बाहर आ गए, जो चिक चिक कर मीरा के दिल पर और रूह पर लगे हुए जख्मों की गवाही दे रहे थे। मेरी जान, सिर्फ एक बार थोड़ी सी हिम्मत करके मेरी मोहब्बत की पनाहों में आकर तो देखो। तुम्हारे हर दर्द की दवा मेरी कुर्बत है। मेरी कुर्बत तुम्हारे रूह पर लगे हुए हर जख्म को धो देगी। मेरी जान, एक बार तो अपने शौहर पर एतमाद करके देखो। सामिर की इस कदर मोहब्बत भरी मीठी बातों से मेरा का दिल भर आया। रोते हुए वो मासूम बच्चों की तरह इसके होंठ काँप रहे थे। वो दिल से सामिर की मोहब्बत को समझ रही थी। उसे सामिर की आंखों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत नजर आ रही थी, मगर चाहकर भी अपने डर से जीत नहीं पा रही थी। मेरी जान, रो नहीं। जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हैं? मेरा जो ना तो अपने डर से पूरी तरह से जूझ पा रही थी और ना ही सामिर को खुद से दूर होते हुए देख सकती थी। मैं अपनी जान से कभी नाराज़ हो ही नहीं सकती, इसलिए अपने दिमाग से इस तरह की बातें निकाल दो। खुश रहो, मैं तुम्हें यहाँ घुमाने के लिए लेकर आया हूँ। हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छी सी यादें इकट्ठी करनी है। कल को हम अपने बच्चों को दिखाएंगे कि इनके मम्मी पापा कितने रोमांटिक हुआ करते थे। बस प्लीज़ तुम अपने स्ट्रेस से बाहर आओ और एंजॉय करो। बच्चे वाली बात पर मेरा शर्मा कर नज़रें झुकाए ब्लश कर रही थी। हाय सदके जाओ, मेरे होने वाले बच्चों की बात इतनी खूबसूरत है। मेरी ज़रा सी रोमांटिक बातों से इतना ब्लश करती है, लगता है मेरे बच्चे तो गुलाब के जैसे पंख ही पैदा होंगे। सामिर मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोगों को नीलम वैली के लिए निकलना है। जिस जगह का आप नाम बता रहे हैं, मैं वहाँ पर क्या देखने के लिए है? मेरा कश्मीर पहली बार आई थी, तो इसलिए उसे यहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। वैसे तो यहाँ पर बहुत से खूबसूरत मकामात देखने के लिए कश्मीर को जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है, मगर यहाँ की मशहूर जगह में से एक जगह नीलम वैली को आज़ाद कश्मीर की एक मशहूर तरीन जगह समझा जाता है, जहाँ नहायत खूबसूरत और दिलकश है। वादी नीलम अपनी खूबसूरती से सियाहों में बहुत मशहूर है। हर साल पाकिस्तान और बैरून मुल्क से सियाह बड़ी तादाद में इस वादी में घूमने आते हैं। यहाँ पर घूम फिर कर लोग बहुत सुकून महसूस करते हैं और अपना सारा स्ट्रेस भूल जाते हैं। यहाँ पर कुदरत के बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलते हैं। मीर, क्या पहले भी यहाँ पर आए हैं? इस जगह के बारे में इतनी जानकारी सुनकर मीरा ने सवाल किया। हाँ, आया था बहुत पहले, कॉलेज के दिनों में दोस्तों के साथ 1-2 बार आया था। इसके बाद मसरूफ़ियात इतनी ज़्यादा हो गई कि कभी इस तरह घूमने फिरने का मौका ही नहीं मिला, मगर ये टूर मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन टूर होगा, क्योंकि उस टूर में मेरी मोहब्बत मेरे साथ है। कहते हुए सामिर ने बड़ी मोहब्बत भरी नज़र मीरा के चेहरे पर डाली। वो अपने हर अंदाज से उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहता था, जिसमें कहीं न कहीं वो आस्ते आस्ते कामयाब होता जा रहा था।
عامر کی باتیں میرا کے دل چھونے لگی تھی۔ اب میرا خود سے اپنے آپ کو میر کی محبت کے لیے تیار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ فرق پڑا تھا عامر کی محبت اور کیئرنگ انداز سے۔ احمد آج نہیں، تم کل کا پروگرام فکس کر لو۔ میں آج نہیں آ سکوں گا، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ کیوں، آج تم قسمیں آزاد کروانے کے لیے جانا ہے؟ رومانسا کی گیدرنگ میں نہ آنے کا سن کر احمد نے بھڑک کر کہا، تو یار اگر کل گیدرنگ کرے گا تو کون سا مسئلہ ہو جائے گا؟ رومانسا اس وقت کہیں بھی جانے کے موڈ میں نہیں تھا، کیونکہ اسے گھر جا کر میرب سے قزبل نکالنے تھے۔ اسے اپنے کس نہ ملنے کی وجہ سے بہت تپ چڑھی ہوئی تھی۔ راستے میں اس طرح عامر کا فون آنا، وہ تینوں گیدرنگ کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں، تو رومانسا کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ ارمان، زیادہ شوخیاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سے پوچھا نہیں گیا تم گیدرنگ میں آ رہے ہو یا نہیں، میں نے صرف تمہیں بتانے کے لیے فون کیا ہے۔ تم آ رہے ہو اور آنے کا مطلب ہے کہ تم ہر صورت آؤ گے۔ اپنی باتوں کو کھینچتے ہوئے عامر نے کہا، ٹھیک ہے آ جاؤں گا، ویسے بھی کون سا تم بغیر تو نے مان جانا ہے۔ میرے کہنے سے تم لوگوں کی ہمیشہ سے یہی گندی عادت رہی ہے کہ تم لوگ پوچھتے نہیں ہو، صرف فیصلہ مجھ پر تھوپتے ہو، اس لیے میرے لیے یہ کچھ شاکنگ بات نہیں ہے۔ تیاری رکھو کمینوں، میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں۔ رومانسا نے فل غصے میں بولتے ہوئے حامی بھری۔ احمد، تھینک یو سو مچ، تم کتنے اچھے دوست ہو، قسم سے یار، فوراً سے مان جاتے ہو، چاہے تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو۔ احمد کو رومانسا کے آنے کی اس قدر خوشی تھی کہ اس کے غصے والا لہجہ بھی اس نے اگنور کر دیا۔ رومانسا، لعنت ہے تم پر، بے عزتی کروا کر بھی تمہیں مزہ ہی آتا ہے۔ احمد کے جوک پر رومانسا نے جواب دیا، کہتے ہوئے رومانسا کی بھی ہنسی نکل گئی۔ کوئی بات نہیں، ہماری پنجابی یار کی فطرت ہے گالیاں دینا، دوستوں کو بے عزت کرنا، اس لیے ہمیں نہ اس بات کی عادت ہو چکی ہے۔ احمد نے قہقہہ لگا کر ہنستے ہوئے کہا، جی نہیں، میرے یاروں کی حرکتیں بھی ویسے ہی گالیاں کھانے والی اور بے عزت ہونے والی، جیسا کہ اس وقت بنا پلان کے مجھے تم لوگ بلا رہے ہو۔ یار شادی شدہ بندہ ہوں، میرا خود کے بھی کوئی پلان ہو سکتے ہیں۔ رومانسا نے ایک نظر میرب کے چہرے پر ڈالی، جو رومانسا کے غصے سے ڈری ہوئی چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں ہاں یار، ہم نے کون سا تمہیں ساری رات اپنے پاس رکھنا ہے، 1-1.5 گھنٹے کی بات ہے، اس کے بعد جو تمہاری پلان ہے جا کر پوری کر لینا۔ احمد نے بات کو کچھ اور رنگ دے دیا، اپنے منہ بند کرو ورنہ ایسے چپیڑے لگاؤں گا نا تجھے کہ واپس سے نشے میں ہونے والی فیلنگ آئے گی۔ مائک اوپن تھا۔ ساجد اور احمد دونوں رومانسا کی بات سن کر قہقہہ لگا کر ہنسے تھے۔ رومانسا نے فون بند کر کے سامنے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا، میں 1-1.5 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا، خبردار جو تم نے سونے کی کوشش بھی کی تو۔ میرب کو گاڑی سے اتار کر رومانسا سیدھا احمد اور ساجد کے پاس جا رہا تھا، مگر جاتے ہوئے میرب کو دھمکی دے کر گیا کہ وہ اس کے آنے سے پہلے سو نہیں سکتی۔ اگر نیند آ گئی تو اس میں تو میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرب جو ذہن میں پلان بنا رہی تھی کہ جیسے ہی اسے اپنے دوستوں کی جانب جائے گا تو وہ آرام فرمائے گی، مگر اپنے پلان پر پانی پھرتے ہوئے دیکھ کر میرب نے منمناتے ہوئے کہا، نہیں میری جان، اگر تمہیں نیند آ گئی تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، اور پھر آ کر جو میں تمہارا حشر کروں گا اس میں بھی میرا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ وہ گہری نظروں سے دیکھتا ہوا سرد لہجے میں بولا، آپ بہت ظالم ہیں، چھوٹی سی بات پر موڈ بنا لیتے ہیں۔ میرب کی دھمکی کے جواب میں منہ بسوڑتی ہوئی بولی، تم میرے آنے سے پہلے سو کر دکھانا، اس ظالم کا مطلب ہے تمہیں میں آ کر سمجھاؤں گا۔ اگر تم اپنی ناخیریت چاہتی ہو تو میرب سونا مت، میں بتا کر جا رہا ہوں، پھر کہنا کہ میں نے تمہیں آگاہ نہیں کیا۔ دھمکی دے کر آنکھوں پر گوگل لگاتے ہوئے گاڑی واپس گیٹ سے بیک کرتا ہوا نکل گیا۔ مجھے تو نیند آ رہی، میں تو جا کر سوؤں گی، جو بھی کرنا ہے کر لینا، ہر وقت دھمکیاں دیتے رہتے ہیں عقڑوسا کہیں کے۔ میرب کے جانے کے بعد اپنے منہ میں بڑبڑاتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی، اس بات سے بے خبر کہ اوپر کھڑی ہوئی مہک ان کے آپس میں ہونے والی ساری بات چیت سن چکی ہے۔ ارمان، اب تم دونوں آپس میں بالکل ٹھیک ہو جاؤ یار، ایک چھوٹی سی غلط فہمی کو لے کر تم لوگوں نے ایک دوسرے سے دوری بنا رکھی ہے، جو کہ بالکل اچھی نہیں لگ رہی، ہم آپس میں بیٹھ کر غلط فہمی کو دور بھی تو کر سکتے ہیں۔ احمد نے رومانسا اور ڈاکٹر ساجد کے بیچ میں مرح والی بات کو لے کر جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں، میرے دل میں ساجد کے لیے کچھ غلط نہیں ہے، شاید اس وقت بھی کچھ زیادہ ہی ریئیکٹ کر گیا تھا۔ اب میرے دل میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے، ساجد کو لے کر بس پچھلے دنوں کچھ مصروفیات بہت زیادہ رہی جس کی وجہ سے میں تم لوگوں سے مل نہیں سکا، اور نہ ہی اس بات کو کلیئر کرنے کا مجھے موقع ملا۔ تم بھی اس بات کو چھوڑ دو، رومانسا نے تسلی بخش انداز سے کہا۔ تو ٹھیک ہے، پھر اٹھ کر ایک دوسرے کو گلے لگاؤ۔ ہاں ابھی لگا لیتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ رومانسا اور ڈاکٹر ساجد ایک دوسرے کے گلے ملے اور احمد بھی دونوں کے گرد اپنے بازو پھیلا کر دونوں کے گلے لگ گیا۔
तीनों दोस्त बहुत दिनों बाद इकट्ठे हुए तो वक्त का पता ही नहीं चला। वो पिछले 3 घंटे से बैठे हुए आपस में गप्पे मार रहे थे। अब तो रुमान साहब को भी वापस जाना भूल चुका था। बारबेक्यू के मज़े उड़ाते हुए साथ में गप्पे हाँक रहे थे तो वक्त का पता कैसे चलता। मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए, तुम्हारी भाभी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं सिर्फ 1.5 घंटे का बोल कर आया था और कमीनों तुम दोनों ने इतना टाइम लगा दिया है। रुमान को अचानक से ख्याल आया तो वो अपना मोबाइल उठाकर जेब में डालते हुए उठ खड़ा हो गया। हाँ भाई जाओ, अब तो हमारा यार शादीशुदा हो चुका है तो इसके पास हमारे लिए टाइम कुछ बचता है। अनकरीब ये साहब भी बीवी बच्चे वाले हो जाएंगे। बच्चा मैं बेचारा अकेला बन जा रहा है। अहमद रुमान साहब को जाते हुए देखकर मिस्कीनों वाली शक्ल बनाकर बोला, अपनी बकवास बंद करो, तुम बंजारे का भी बहुत जल्द हल निकाल लेंगे, कोई ढूंढेंगे तुम्हारे लिए। फिक्र ना करो, तुम्हें छुड़ा नहीं रहने देंगे। साजिद कहते हुए हंसा, हाँ यार बिल्कुल, बहुत जल्द हमें इसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। वैसे ही ऐसी मिस्कीनियों वाला शक्ल बनाकर रोज़ पार्टियाँ रखेगा और हमें जलील किया करेगा। रुमान साहब ने डॉक्टर साजिद की हाँ में हाँ मिलाई। और साजिद, मैं तुम्हारे लिए दिल से बहुत खुश हूँ। एक बार फिर से रुमान साहब साजिद के गले लगकर मुबारकबाद देते हुए बोला, तुमने डॉक्टर हुमा का प्रपोजल एक्सेप्ट करके बहुत अच्छा किया। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे हमसफ़र साबित हो। रुमान साहब की दुआ पर साजिद और अहमद ने आमीन कहा। रुमान साहब उनसे इजाज़त लेता हुआ गाड़ी में बैठकर घर की तरफ निकल चुका था। मीर, मैं चेयर लिफ्ट में नहीं बैठूंगी, मुझे डर लगता है। मीर की जान, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा मीर है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी हिफाजत के लिए। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। सामिर ने मेहरा के कंधे पर हाथ रखकर बड़े मोहब्बत भरे लहजे से कहा, मगर मीर, मैंने अक्सर फिल्मों में देखा है कि चेयर लिफ्ट टूट जाती है तो फिर इंसान लोग खाई में गिर जाते हैं और वहाँ से आपको कोई भी ढूंढ नहीं सकता। मीरा ने अपना मासूम सा डर मीर के गोश गुजार किया। मीरजान, वो सब फिल्मों में होता है, वो सब शूट करने के लिए दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सिक्योरिटी होती है। चेयर लिफ्ट को बाकायदा चेक किया जाता है, इसकी सर्विस करवाई जाती है। ऐसे थोड़ी लोगों की जानों के साथ खेलने के लिए चेयर लिफ्ट लगाई है। अब मेरी जान, थोड़ा सा दिल बड़ा करो। एसीपी सामिर मलिक की बीवी हो तुम, और तुम्हारा शौहर जो किसी चीज़ से नहीं डरता। और मेरी बीवी छोटी छोटी चीज़ों से डर जाती है। मेरी जान, डरो मत, मेरे साथ बैठो, कुछ भी नहीं होगा। देखो वो सामने देखो, बच्चे बैठे हुए हैं, वो देखो कितनी लड़कियाँ चेयर लिफ्ट के अंदर बैठी हुई है और कितना एंजॉय कर रही है। आप लड़कियों की तरफ मत देखें, उन्होंने कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए। हाँ हाँ हाँ, सामने ने हल्का सा कहकहा लगाया क्योंकि वो काफ़ी मॉडर्न लड़कियाँ थीं, इनके कपड़े भी काफ़ी टाइट थे। लड़कियाँ काफ़ी फैशनेबल लग रही थी। शामिर को हंसी इस पर नहीं, अपनी मासूम छोटी सी बीवी की जेलसी पर आ रही थी। जो हुक्म आप कहें तो तुम कहो तो मैं अपनी आंखें बंद करके लिफ्ट में बैठ जाता हूँ। सामिर ने सीने पर हाथ रखकर थोड़ा सा सर को छुपाते हुए हुक्म बजा लाने वाला स्टाइल अपनाया था। जी नहीं, अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा, आप आंखें बंद कर लें बस। आप इस तरह की चीप लड़कियों को नहीं देखेंगे। मीरा ने पहली बार बड़े हक से सामिर को किसी चीज़ से रोका था जो कि सामिर को बहुत अच्छा लगा। ठीक है डन, तुम्हारा मीर किसी भी लड़की की तरफ नहीं देखेगा। एयर लिफ्ट पर बैठते हुए मेरा का दिल बहुत घबरा रहा था। इसके दिल की धक धक मीर के कानों तक आ रही थी। वो चेयर लिफ्ट में बैठे हुए सामिर के साथ चिपकी हुई थी। सामिर ने एक हाथ इसके कंधे से गुजारते हुए दूसरा हाथ कंधे पर रखकर उसे बिल्कुल अपने साथ मैच कर रखा था। सामिर तो बाहर के नज़ारे देख ही नहीं पा रहा था क्योंकि इसकी नज़रें तो आंखें बंद करके सांस रोके हुए बैठी मीरा पर थी, जो इसको सीने में सर छुपाए खुद को महफूज समझ रही थी। मेरा आंखें खोल के देखो, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं यार। ऐसे क्या फ़ायदा यहाँ पर आने का अगर तुमने कुछ देखा ही नहीं तो। नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना, बस अब जल्दी से मुझे चेयर लिफ्ट से उतारें, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओके, डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम जिस महफूज मकाम पर सर रखे हो यहीं पर रखे रहो। मेरे ख्याल से तो हमें चेयर लिफ्ट में ही रहना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा इस कदर करीब होना। मीरा ने सामिर की बात पर शर्मा कर इसके सीने पर एक मुक्का जड़ा। उफ, जालिम लड़की। सामिर ने हंसते हुए कहा, आप शौहर के देखने पर भी पाबंदी आयत करोगी? जी पाबंदी है, आप आराम से बाहर के ऐसे नज़ारे देखें जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं। तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें? तुझे मिलकर भी प्यास नहीं करती, नज़ारे हम क्या देखें? सामिर ने अपना चेहरा मेरा को बेहद करीब करते हुए सॉन्ग का बोल गुनगुनाया। सामिर ने अपना चेहरा मेरा के इस कदर
ऊपर झुकाया हुआ था कि सामिर की गरम गरम सांसें मेहरा के ठंडे ठंडे चेहरे से टकरा रही थी। सामिर की गरम सांसों से मेहरा के दिल जोर से धड़कने पर मजबूर कर दिया था। गरम सांसों की गर्मी से घबराते हुए मेहरा ने सामिर के सीने पर रखे हुए अपने हाथों से सामिर की जैकेट को कसकर पकड़ लिया। अब सामिर के लब मेहरा के खूबसूरत गालों के इतने करीब थे तो बिना शरारत किए वापस नहीं पलट सकते थे। सामिर ने बेख्तियारी में अपने लब उसके गाल पर रखकर जोर से किस किया। मीर मत करे, कोई देख लेगा तो देख लेने दो। कश्मीर की खूबसूरत वादी में रोमांस के लिए अपनी जाती बीवी साथ लाया हूँ। अगर कोई देखता है तो बड़े शौक से देखे। कम से कम लोगों को रोमांस करने के लिए नए आइडिया मिलेंगे। लोगों को पता होना चाहिए चेयर लिफ्ट में सिर्फ डरने के लिए नहीं बल्कि रोमांस करने के लिए भी बेहद ज़बरदस्त किस्म का पॉइंट है। मेरा सामिर की बातें तो शर्माए हुए इसके सीने के साथ चिपकी हुई थी, जहाँ सामिर की गर्म सांसों से उसकी धड़कनों को बेतरतीब होने से रोक नहीं पा रही थी। वहीं सामिर भी मेरा की छोटी छोटी सांसें जिनको अपने सीने पर महसूस कर रहा था, वो सांसें सामिर के दिल की रफ्तार भी बढ़ाने की वजह बन रही थी। सामिर ने मेरा को कश्मीर के खूबसूरत मनाजिर दिखाए, वहाँ के ट्रेडिशनल खानों को लुत्फ़ अंदोज़ कराया। मेरा नीलम वैली की खूबसूरत नदी को देखकर वो बहुत खुश थे। मेरा ने वहाँ पर बहुत एंजॉय किया और खुद से सामिर के साथ पिक्स बना रही थी। वो बच्चों की तरह उछल उछल कर अपनी खुशी का इजहार कर रही थी। इस सारे दौरानियों में सामिर बार बार उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने नज़दीक करके ही खड़ा हुआ था, मगर मेरा के चेहरे पर सामिर ने कहीं भी इस डर को महसूस नहीं किया। वो इस वक्त बहुत मुतमईन होकर सामिर के साथ चल रही थी। यहाँ तक कि जहाँ वो पानी या ऊंचाई को देखकर थोड़ा डर जाती थी तो जल्दी से सामिर के हाथ को थाम कर खुद को महफूज कर लेती थी। सामिर के लिए यह बात ही बेहद खुशी का बात थी कि आज सामिर को मेरा के अंदर की वो डरी हुई सामिर हुई बच्ची बहुत खुश दिखाई दे रही थी। घर के अंदर वाले गेट पर महक कब से इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रही हो। रहमान सा ने जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा तो महक उसे सामने ही वॉक करती हुई नजर आई। रहमान सा उसे नज़रअंदाज करता हुआ पास से गुजर रहा था। महक की तवक्को के मुताबिक रहमान सा उसे इग्नोर करता हुआ गुजरा तो महक ने आगे बढ़कर तेजी से जाते हुए सा का हाथ पकड़ लिया। रहमान सा, ये क्या बदतमीजी है? सा, ये बदतमीजी नहीं, ये मेरा प्यार है जो मुझे सब करने पर मजबूर कर रहा है। रहमान सा, महक, मेरी नज़रों में पहले ही तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, अब ये सब करके क्यों मस्जिद खुद की तौहीन करवा रही हो? रहमान सा ने बहुत सख्त लहजे से कहा। रहमान सा झटक कर अपना हाथ महक के हाथ से छुड़ा लिया। रहमान, क्यों तुम मुझे इस तरह इग्नोर कर रहे हो? पहले तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे, आज मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। महक ने बात करते हुए एक कदम सा की जानिब बढ़ाया। सा ने इससे दूरी बनाने के लिए 2 कदम पीछे को ली हैं। महक, खुद को इतना गिराओ कि एक वक्त आए कि तुम खुद को पहचान ही ना सको। शर्म वह एक औरत का गहना होता है। अपना नहीं तो कम से कम औरत जात की इज्जत का ही लिहाज कर लो। तुम जो चोरी छुपे मुझसे मिलने की मौका ढूंढती रहती हो, इसके पीछे तुम्हारा क्या मकसद छुपा है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? मुझे समझ में नहीं आता। मेरे और मेरे बीवी के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा करना बंद करो। तुम्हें इससे कोई भी फ़ायदा नहीं मिल सकता। महक, एक बात तो तुम मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती हो, जिस भी रिश्ते को चाहता हूँ उसको पूरे दिल से निभाना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। जब मैं तुम में इंटरेस्टेड था इस वक्त तुमने सिर्फ पैसे को तरजीह दी और आज भी तुम पैसे को ही तरजीह दे रही हो। तुम्हें मेरी तरफ से मेरी दौलत खींच कर ला रही है और तुम्हारे सामने वो बेवकूफ़ रोमियो नहीं खड़ा जिसको तुम्हारे मकसद समझ में नहीं आते हैं। आज तुम्हारे सामने शहर का छटा हुआ जाना माना बिजनेसमैन खड़ा जिसका वास्ता रोज़ हज़ारों लोगों से पड़ता है और हज़ारों लोगों में बहुत से चेहरे तुम जैसे होते हैं जिन्होंने अपने चेहरे को छुपाने के लिए बहुत से पर्दे गिरा रखे होते हैं। मगर अब रोमांसा की नज़रें इतना परखना सीख गई है कि क्या खरा सोना है और क्या पीतल है। इसलिए तुम मुझ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है। मेरी बीवी मुझसे बेलौस बेहद मोहब्बत करती है और इसकी मोहब्बत के सामने तुम जैसी हज़ारों महक भी आकर हमारे दरमियान बदगुमानियाँ पैदा करने की कोशिश करें तो रोमांसा चट्टान बनकर सब बदगुमानियों को चकनाचूर कर देगा। रोमांसा ने अल्फाज इतने कड़वे अंदाज से बोले थे कि कोई भी गैरतमंद लड़की होती तो शायद डूब मरती, मगर ये तो महक थी। महक को जब कोई चीज़ हासिल करनी होती है तो इस वक्त ना तो उसे अपने घर वालों की इज्जत की परवाह होती है और ना ही अपनी इज्जत की। इस वक्त भी वो यही कर रही थी। रोमांसा की इतनी कड़वी बातें सुनने के बावजूद वो अपनी बात से टस से मस नहीं हुई। रोमियो, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मुझे तुम्हारी दौलत से नहीं तुमसे मोहब्बत है। रोमियो, दौलत तो मुझे शादी करके मिल गई थी, अगर नहीं मिला तो वो प्यार था जो मुझे सिर्फ तुम दे सकती हो। मुझे पता है मेरा माजी ऐसा रहा है कि तुम मुझ पर यकीन नहीं कर पा रहे, मगर यही सच है कि मैं अब तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम चाहो तो मुझसे कसम ले लो, मुझे तुम्हारी दौलत से कोई गर्ज नहीं।
मुझे तुम चाहिए हो रोमियो, मैं तुम्हारी मोहब्बत को भूल नहीं पा रही, प्लीज़ मेरा हाथ थाम लो। रोमान, एक बार बैठकर मेरी बात सुनो, तुम्हें मीरब को छोड़ने के लिए थोड़ा कह रही हूँ, तुम मीरब को रखो अपने साथ। उस मोहब्बत को याद करो जो तुम सिर्फ मुझसे करते थे। मीरब से तुम्हारा ज़बरदस्ती का रिश्ता जोड़ा है, मगर रोमान, तुम्हारा और मेरे दिल का रिश्ता बचपन से। तुमने मुझे प्यार किया, मैं मानती हूँ मेरी गलती है कि मैंने इस वक्त तुम्हारे प्यार को पहचान नहीं सकी, तो ठीक है, मेरी गलती की सज़ा मुझे खुदा ने दे दी। प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें वो महक बनकर दिखाऊंगी जैसी महक तुम हमेशा चाहते थे। महक बातें करते हुए रोमांसा के करीब आ गई थी, हाथ जोड़ते हुए अपने और रोमांसा के सीने पर हाथ रखना चाहती थी। रोमांसा की वजह पर्सनालिटी, खूबसूरत और भरपूर मर्दानगी महक को अपनी तरफ खींच रही थी। तुम्हें समझाना मतलब पत्थर के आगे अपना सर फोड़ना है। रोमांसा महक के हाथ को झटकते हुए पीछे वो जो उसको सीने पर रखने की कोशिश कर रही थी। गुस्से से बड़े बड़े कदम उठाता अपने रूम की जानिब बढ़ गया। महक ने पीछे से रोते हुए मध्यम से आवाज़ में 2-3 बार पुकारा, मगर रोमांसा बिना पलटे चलता ही गया। रोमांसा रूम के अंदर दाखिल हुआ तो मध्यम सी रोशनी ने इसका इस्तकबाल किया। मीरब करवट लेकर कंबल ओढ़े हुए लेटी थी। रोमांसा महक की बेतुकी बातों की वजह से इस वक्त इतने गुस्से में था कि मीरब को सोया हुआ देखकर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि रोमांसा अपने गुस्से वाला मूड मीरब को नहीं दिखाना चाहता था। वो सोफे पर बैठा अपने शूज उतार कर अब अपने मोजे शूज के अंदर रख रहा था। अपने मूड को लाइट करने के लिए रोमांसा ने अलमारी से अपना सूट निकालकर वॉशरूम के सामने रखी हुई चप्पलें पहनते हुए वॉशरूम में चला गया। आप मेरे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे। महक अगर आपको मुझसे छीनना चाहती है तो मैं उसे उसके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मीरब ने भीगी पलकों से आंसू साफ करते हुए सोचा। मीरब जो किचन से पानी लेने की घर से जा रही थी, इसी वक्त रोमांसा और महक के बीच हुई सारी बातें वो सुन चुकी थी। हालांकि उसने देखा था कि रोमांसा ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया, मगर फिर भी मीरब का दिल बहुत दुखा हुआ था। इसलिए वो रोमांसा के आने से पहले कंबल में लेट गई, क्योंकि वो अपने आंसू रोमांसा पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। रोमांसा फ्रेश होकर अपने गुस्से को काफ़ी हद तक कम करने के बाद टॉवल से सर को रगड़ते हुए बाहर आया। वाइट कलर का ट्राउज़र पहने हुए गले में टॉवल डाल रखा था और रोशन के सामने खड़ा होकर सर खुश करने के बाद अपनी नज़रें बेड पर कंबल में दुबक कर लेटी हुई मीरब पर रखे हुए था। मीरब जो सोने की भरपूर एक्टिंग कर रही थी, इसकी नज़र रोमांसा के कसरती सीने पर पड़ी, जिस पर अभी तक पानी के कतरे खड़े थे। मीरब की नज़रें जैसे ही रोमांसा की कसरत जिस्म पर गई और उसने कंबल पर अपने मुंह पर खींचते हुए शर्म से सांसें रोक ली। मेरी ड्रामा क्वीन, उठ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें देख चुका हूँ कि तुम जाग रहे हो। रोमांसा ने मिरर में देखते हुए ही कहा। देख चुके हैं तो देखते रहे, कम से कम रूम में आते हुए कपड़े तो पहन लिया करे। मीरब ने कंबल के अंदर से आवाज़ दी, क्योंकि रोमांसा का कसरती जिस्म देख के मीरब का दिल जोरों से धड़कना शुरू हो चुका था। पहली बात तो ये कि मैंने कपड़े पहन रखे हैं, दूसरी बात अगर मैं बिना कपड़े के भी आ जाऊँ तो मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। रूम में मेरी एक गलत बीवी के सिवा और कोई नहीं है। रोमांसा हंसते हुए टॉवल को सोफे पर फेंकते हुए मीरब की जादू कदम बढ़ाने लगा। साहब प्लीज़ पहले जाकर शर्ट पहने। शाह ने मीरब के मुंह से कम्बल हटाया तो मीरब ने सर मारकर अपने चेहरे पर हाथ रख लिए। अपनी बीवी के पास आने से पहले मैं शर्ट पहन कर आऊँ। माशाल्लाह, काफ़ी वज़न नसीन ख्यालात है तुम्हारे। मेरी जान, बीवी के पास आने से पहले शर्ट को पहनना नहीं जाता, उतारा जाता है। रोमांसा कंबल का कोना उठाकर मीरब के कंबल के अंदर घुस चुका था। साहब प्लीज़ शर्ट, चुपचाप लेटी रहो, और मैं तुम्हारी शर्ट को भी वक्त से पहले गायब कर दूँगा अगर दोबारा मुझे शर्ट पहनने वाली बात कही तो। उसके लबों पर उंगली रखकर इसके बात को बीच में ही काटते हुए इतनी बेबाकी से बोला कि मीरब का मुँह खुला का खुला ही रह गया। मीरब के खूबसूरत मखमली खुले होठों को देखकर शाह का दिल बेईमान होने लगा था। वो गहरी नज़रों से मीरब के मखमली होठों को देखते हुए शाह बेख्तियार मीरब के लहू पर झुक गया और मीरब के सर के पीछे से हाथ रखते हुए अपने हाथों से सुलगते हुए लब मीरब के मखमली होठों पर रखकर बड़ी शिद्दत से उसके मखमली होठों को अपने हाथों से लबों में कैद कर ले गया। ये सब शाह ने इतना अचानक किया कि मीरब को संभलने का मौका तक का नहीं मिला। शाह की इस अचानक आवाज़ से मीरब पूरी तरह से फड़फड़ाई, मगर वो मासूम जान ये भूल गई थी कि इस वक्त बाहर जैसे आती से रोमांसा की पकड़ में आ चुकी है, तो फड़फड़ाने से कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला। इसकी फड़फड़ाहट को शाह पूरी तरह से रुकते हुए इस पर काबिज हो रहा था। इसकी टांगों को अपनी टांगों से पिन करके टांगों को अपनी जगह पर साबित कर चुका था। एक हाथ उसके सर के नीचे, दूसरे हाथ से मीरब का हाथ पकड़े हुए ऊपर की तरफ को पिन करके इसकी नाजुक सी उंगलियों में अपनी सख्त मर्दाना उंगलियां फंसाकर उसे पूरी तरह से बेबस करके उसके लबों की नमी को बड़ी शिद्दत से पीते हुए मदहोश सा हो रहा था। इसके नकली होठों की नमी को खुश अंदाज से अपने अंदर उंडेल रहा था
मुझे सदियों से प्यास है। वो इतनी शिद्दत से होठों की नमी को पी रहा था, मेरे का सांस लेना मुश्किल हो गया था। मगर सांस ने उसे कुछ इस तरह से जकड़ रखा था कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। जबकि थोड़ा सा सांस को इसके मामूली होठों के नमी पीने का बस सबर आया तो वो फूली हुई सांस ली, अपना चेहरा ऊपर उठाकर मीरब के चेहरे की जानिब देखा, जो सांस की शिद्दत से भरी उखड़ी हुई सांसें लिए लेटी थी। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। सॉरी माई ब्यूटीफुल वाइफ, अब किसी नशा आवर को नशे की तलब हो रही है और पूरे एक दिन के बाद उसे दस्तयाब हो तो इसका असर मेरे जैसा ही होगा। रोमान साहब को अपने केवल कोई शर्मिंदगी नहीं थी। जब हम थोड़ी सी आज़ादी पाते हैं, मुक्का साहब के सीने पर बरसा दिया। साहब के मुंह से आह की आवाज़ निकली, दर्द से नहीं, मुस्कुरेपन से। जालिम लड़की, एक किस लेने पर वो इतना दिल से मुक्का मारता है। साहब मसनूई दर्द दिखाते हुए अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, आप मुझे पहले ये बताएं कि आपने कहा था कि आप 1-2 घंटे तक आ जाएंगे, पूरे 4 घंटे के बाद वापस आए हैं। मुझसे धमकी देकर गए थे कि अगर मैं सोई तो आप मेरा बुरा हशर करेंगे। अब आपके लिए कौन सी सज़ा है वो भी बता दीजिए। मीरब साहब के चेहरे की जानिब देखते हुए गुस्से से बोली, मेरी जान, मेरे लिए भी वही सज़ा जो तुम्हारे लिए थी। अब तुम मेरा हशर बुरा करो, मैं तो फुल तैयार हूँ अपना हशर बुरा करवाने के लिए। साहब बाजू फैलाकर बेड पर लेट गया। साहब को पता आप बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा बेशर्म है। मीरब साहब के अल्फाजों से घबराई हुई बेड से उठ खड़ी हुई थी। मेरी अनरोमांटिक बीवी, इनको बेशर्मी नहीं रोमांस कहते हैं। इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी है तुमने, मगर इस छोटे से लफ्ज़ का मतलब नहीं समझती।